today's discussion is apart from the discussions what we are doing in our classes. Okay, and today I have selected one of the most important topic here. Okay, and this topic is important for your prelims exam as well. Okay, so when I will be discussing this topic, sit with pen and paper, write those important informations that I will discuss with you. Right, you can get prelims question, you can get GS mains question here, and this session will be helpful for the optional students as well. Clear? Because I'm going to discuss this theme in a very detailed manner. Okay, like you all are aware, what we are going to discuss is the role of princely states during Indian national movement, right? So basically this is a series. It means in this series, this is the first lecture. I will cover 3 lectures here, okay, that you are getting on the slide here. The first lecture that I'm going to cover today is role of princely states, okay, in Indian national movement. This part we are going to cover in this lecture, and in the second lecture I will cover integration of princely states, how it was done, okay, the issue of Kashmir, the issue of Hyderabad, all this I will discuss in detail. And in the third lecture I will cover process of formation of states in India, what were the various challenges and the constitutional provisions regarding the same. Okay, so you can easily realize the importance of these topics for your exam. Okay, so that is the first topic that we are going to cover, role of princely states during the Indian national movement. Okay, the purpose is not only to discuss the topic in a very static manner. Here the purpose of this class is to make you understand that how topics are interlinked with each other. Okay, how the developments during this entire Indian national movement period, we should try to understand all these developments in an integrated manner. Okay, the correlation of facts, integrating different themes with each other. Okay, this is also the basic purpose of this lecture, that you will learn this art, and this art will be extremely helpful for your मेंस एग्जामिनेशन. बात समझ में आई? इस क्लास का पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि स्टैटिक वे में मैं टॉपिक्स को डिस्कस करूं, राइट? बहुत सारे टॉपिक्स को इंटीग्रेट करना है, स्टोरी फॉर्मेट में समझना है, ठीक है, और वो अप्रोच डेवलप करना है, वो स्किल डेवलप करनी है, और वही चीज़ काम आएगी हमारे मेंस आंसर राइटिंग में, राइट? अदरवाइज वॉट एवर वी लर्न इन अ स्टैटिक मैनर, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ओनली. ठीक है, so this topic will be very much helpful for you. Now before I start this topic, okay, you must know that we are using a word princely state. So what are the princely states? Okay, so when British were ruling in India, there were 2 category of states under British rule. Those states which were part of British Indian Empire, and they will be called what? British provinces or British Indian provinces. ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया था? इंडिया में टेरिटरीज को डायरेक्टली एनेक्स किया था, so that will be called British provinces or British Indian provinces. But 1858 onwards, British will give up this policy. They will abandon this policy of annexation of states, so the states will remain independent. So those states are known by the name of princely states. ठीक है ना, उसी को हम princely states कहते हैं. They are also called native states. They are also called Indian states. Princely states, native states, or Indian states. And when we are using this word British Indian provinces or Indian provinces, we will use this word for those states which were part of the British Indian Empire. ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे, right? So they were there was a nominally sovereign entity. It means they were legally free. They were legally independent entities from the British government, and this situation will arise 1858 onwards. Okay, they were legally free entities. We can also call them that they were legally free entities in India, right? That was not directly governed by the British, but rather by an Indian ruler. These states were governed by the Indian rulers. Indian ruler, local rulers govern करते थे. So here we see a kind of indirect rule that was subject to subsidiary alliance and suzerainty or paramountcy of the British crown. Now this definition is complicated for you. In order to learn this definition in a better manner, we will have to
discuss about some important developments. So again, I am going to start the topic from the very basics. Clear? Because this definition will apply after 1858 onwards. So now I am going to discuss the concept with the very basics. And what is the basic here? Look, whenever we talk about British rule in India, now I will relate some concepts here that is very important. Whenever we talk about British rule in India, we all know that there are one part is what? EIC rule. You all know this. One part is what? EIC rule. And the second is what? British Crown rule. One part is EIC rule and the second part is British Crown rule. And maintain your running notes also. Notes भी बनाना है because बहुत सारी चीज़ें इसमें you will not find this content at one place. कहीं भी मिलेगा नहीं आपको. ठीक है? You will find it diverted. अलग अलग जगहों पे ढूंढना पड़ेगा आपको. So make notes also. So one part is what? EIC rule. Right? Company rule. This is what? Company rule in India. Company rule in India. It means it was very strange that a trading company was ruling in India. Okay, what should be the task of a company? To do trade and commerce. But here what this company is doing? This company was basically ruling India. And the rule of this trading company started when? So the rule started from 1757. This is the time period. You all know about this. This is what? Battle of Palamoucy. So the rule started from this time period. Okay, 1757. And the rule of the company continued till this year, that is 1858. 1858. The company will rule. And this is approximately 100 years of rule. This is approximately 100 years of company's rule. 100 years of company's rule. यहाँ कंपनी ने 100 years तक रूल किया. ठीक है, इस बात को तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि व्हेन कंपनी इज रूलिंग, कंपनी हैज गॉट द पैटर्नेज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो दिस फेज इज व्हाट? डायरेक्ट ब्रिटिश रूल और इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल? सो द आंसर इज वेरी सिंपल. दिस फेज इज व्हाट? इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल. दिस फेज इज indirect British rule. Clear? And this, in this phase, what happened? So in this phase we see establishment and expansion of British Empire in India, right? In this phase we see what? Establishment and expansion of British Empire in India. यही होता है ना? So the establishment of British Empire in India in the context of which state? You will answer this question. Establishment in the context of which state we are talking? Which regional state we are talking? That is Bengal. Okay, obviously this was the first victory. So establishment means what? Control over Bengal. This is very simple. Establishment means control over Bengal, and control over Bengal means Battle of Palamoucy, Battle of Buxar, Treaty of Allahabad. This is control over Bengal. And what is the meaning of expansion? Expansion means after Bengal, company did what? Company expanded. Okay, its influence in which state? Mysore. In which state? Marathas. In which state? Awadh. All these were what? Regional states of 18th century, and they were ruled by local rulers. ठीक है, यहाँ पे local rulers थे. In the same way Hyderabad, in the same way Karnataka, okay, and in the same way Sikh state. So all these states are local rulers, okay, ruled by the local rulers. Nawabs, Nizams, local rulers, all are ruled by the local rulers. And gradually company did what? It expanded its influence over these states. And this did not happen in a single day. It was a gradual process of development. एक दिन में तो हुआ नहीं ना, काफी लंबा टाइम लगा. And British formulated policies for this expansion also. East India Company had also policies for the expansion of its empire in India. And which policies AIC was following here? So one policy was policy of ring fence. One policy was policy of ring fence.
Do you remember the context of Awadh, where it was used as a buffer state? Clear? The policy of subsidiary alliance. The policy of subsidiary alliance. I hope you all are aware about this. In this lecture, we will not discuss this part in detail. I am just giving a brief introduction. Topic का focus कहाँ है? Princely states and Indonesian movement. So this is just a background. Okay. Policy of subsidiary alliance. Now another policy that you will find here is policy of subordinate isolation. Policy of subordinate isolation. ये subsidiary alliance के बाद आने वाली policy है, subordinate isolation. Okay. This policy simply means what? कि जितने भी local states पर EIC का rule expand हो रहा है, they all are subordinated to ईस्ट इंडिया कंपनी. वो सारी किसके कंट्रोल में आ जा रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी के. they all are subordinated to ईस्ट इंडिया कंपनी, and ईस्ट इंडिया कंपनी will do what? East India Company will ensure that they could never make an anti-British alliance. और इसके लिए क्या करना होगा? डिवाइड एंड रूल. उन सारे स्टेट्स को एक दूसरे से क्या करो? आइसोलेट रखो, उनकी आपस में दोस्ती मत होने दो. दैट इज व्हाट? पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन. आपको याद होगा इन सब्सिडियरी अलायंस देयर वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर रेजिडेंट. रेजिडेंट होता था. रेजिडेंट का काम क्या था? एक काम ये था टू हेल्प द लोकल रूलर इन व्हाट? हैंडलिंग द डिप्लोमेटिक अफेयर्स. और डिप्लोमेटिक अफेयर्स की ऐसी तैसी कर देगा वो. ऐसा डिप्लोमेसी करेगा कि उस लोकल स्टेट का अपने नेबरिंग स्टेट्स के साथ दोस्ती होएगा ही नहीं, कभी भी एंटी ब्रिटिश अलायंस बनेगा नहीं. मेरी बात समझ गया ना? तो पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस के साथ ही ये चीज जुड़ी हुई है. पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन. It means company was bringing the local states, regional states, making them subordinate, अधीन बना रही थी. And at the same time it was doing what? Okay, it was ensuring the isolation of these local states from each other. ये सारे local states को एक दूसरे से क्या करना है? Isolate रखना है, so that they could never form a anti-British alliance. मेरी बात समझ गया? In the same way, company came with another policy. You all know this, okay? That is policy of doctrine of lapse. ये भी इनकी policy आएगी, okay? Policy of doctrine of lapse. When Lord Dalhousie will come to India, he will introduce this policy, doctrine of lapse. Doctrine of lapse से वो क्या करेगा? Regional states, local states को directly annex करने की कोशिश करेगा. He will try to annex the local states. He will try to make them the part of British Empire in an aggressive manner. और वो aggressive manner क्या है? Doctrine of lapse means if you don't have the rightful heir, okay, if you don't have your natural heir, and if you are adopting a child and you are thinking that he will be the next ruler, so this will not happen. In the case of absence of a natural heir, your right to rule the empire will be lapsed. Okay, नेचुरल हेयर होना तय है. फॉर एग्जाम्पल झांसी की रानी, ओके, लक्ष्मीबाई, शी वॉज हैविंग एडॉप्टेड सन. और यहाँ पे कोशिश क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि झांसी को भी एनेक्स कर लो. तो इन्होंने क्या नियम लाया कि अगर आपका एडॉप्टेड सन है, वो नेचुरल हेयर नहीं है, तो योर राइट टू रूल विल बी लैप्स्ड. आप उस स्टेट को रूल नहीं कर पाओगे. दैट स्टेट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर. वो सीधा सीधा ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का हिस्सा हो जाएगा. मेरी बात समझ गया ना? तो दिस काइंड ऑफ पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ये बताओ एग्रेसिव पॉलिसी है कि नहीं? एग्रेसिव पॉलिसी. इफ यू आर एन एडॉप्टेड हेयर, यू विल नॉट गेट द पेंशन. आपको पेंशन भी नहीं दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल नाना साहब कानपुर, ठीक है, पेंशन नहीं दिया जाएगा अगर आप वैलिड हेयर नहीं है, नेचुरल हेयर नहीं है, और वो स्टेट ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन जाएगा. It means what British company is doing, British East India Company is doing, they are not caring for what is ethical or not ethical. They are not caring for valid or non-valid measures. They are trying to forcefully annex the local states as a part of their empire. And the case of Awadh we all know. Awadh was a powerful state, was a part of Treaty of Allahabad. After this, East India Company developed friendly relations with Awadh. Awadh was maintained as a buffer zone. Then in 1801, subsidiary alliance was forcefully applied on Awadh.
सब्सिडियरी अलायंस का मतलब है कि वो स्टेट डायरेक्ट रूल में आया कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस. And what happened in 1856? You all know this. What happened in 1856? So Awadh was annexed to British Empire. It was made a part of British Empire on the pretext of misgovernance. अब भाई तुम एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हैंडल कर पा रहे हो, मिस गवर्नेंस है, और इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट है कि वो अवध को ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का हिस्सा बना ले. Now tell me, these are the local states. For example, you already have discussed in the classes the case of Hyderabad, Karnataka, Maratha, Mysore, Bengal. Okay, ये सारे स्टेट तो आपने क्लास में पढ़े हैं ना. आप ये बताओ कि when British interfered, gradually what happened? These states realized that they have lost their independence or not. When subsidiary alliance was forced upon these states, okay, after some time the states started realizing that we are losing our independent status, and this is a compromise with our self respect. ये हमारे self respect के साथ compromise भी है. And when this doctrine of lapse will come, this doctrine of lapse is what? Forceful annexation of native states, right? Indian states, to make them part of British Indian Empire. अब आप एक बात बताओ, सीधी सी बात, कि अगर आप सभी लोग लोकल स्टेट्स के रूलर्स हो, और यही वाला फेज है 1757 to 1858, and company is following all these policies, what will be your response? You will be satisfied with the policies of the company or dissatisfied? Dissatisfied. Okay, आप क्या हो जाओगे? डिससेटिस्फाई हो जाओगे, स्पेशली subsidiary alliance, especially this policy doctrine of lapse. So what will happen? There was a very famous revolt in the year 1857. We all know this. There was a very famous revolt in the year 1857. ये revolt हुआ. This revolt was started by sepoys, right? This revolt was started by sepoys. सिपाहियों ने इस विद्रोह की शुरुआत करी थी. It was started by sepoys. But gradually what happened? Okay, it was supported by many other classes. Many other classes, okay, came in support of these sepoys. So it was not merely a sepoy mutiny. Okay, it means many other classes came in support of these sepoys. sepoys के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आके खड़े हो गए. जैसे सबसे पहले आके खड़ा होने वाला कौन था? दैट वाज अवध स्टेट. अवध स्टेट, क्योंकि इस रिवोल्ट के ठीक पहले क्या हुआ है? 1856 में अवध वाज एनेक्स्ड फोर्सफुली. एंड व्हाट आर द चार्जेस? व्हाट इज द प्रीटेक्स्ट? प्रीटेक्स्ट क्या है? बहाना क्या है? मिस गवर्नेंस. तो आप बताओ कि अवध स्टेट आके सेपॉइस के साथ खड़ा होगा कि नहीं? द तालुकदार्स ऑफ अवध, the Awadh's army was disbanded. The soldiers of Awadh all will come in support of these sepoys. In the same way, okay, Jhansi Rani will come in support of these sepoys or not? Yes, they will also come in the support of these sepoys. In the same way, from Kanpur, Nana Sahib also came in the support of these sepoys. नाना साहेब भी आ गए सपोर्ट में. और सबसे बड़ी बात है कि मुगल एम्परर वाज आल्सो नॉट हैप्पी with the company's presence in India, and he will also support sepoys. He will give leadership to these sepoys, and the basic objective of this revolt was to restore Mughal power in India. Objective क्या था sepoy mutiny का? To restore or to reinstall Mughal power in India. Mughal power को वापस लाना, to bring back Mughal rule in India. And the local states, native states were supporting. Okay, they were supporting whom? The sepoys. Okay, to bring back Mughal rule in India. Peasants were also supporting. Okay, artisans were also supporting. So there were many classes who were supporting in this mutiny. Okay, this was a mutiny or first war of independence. This matter is debatable, but we should consider that this was more than sepoy mutiny, but less than the first great Indian war of independence. This is the valid opinion. Now have you understood this part? यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 तक
रूलर्स का एक बड़ा क्लास ऐसा है जो ब्रिटिश से डिससेटिस्फाइड है, मेरी बात समझ गया। लेकिन रूलर्स का एक क्लास ऐसा भी है जो कंपनी रूल से डिससेटिस्फाई नहीं है, मेरी बात समझ गया ना। देर आर टू क्लास ऑफ लोकल रूलर्स, देर आर टू क्लास ऑफ जमींदार्स। One class of local rulers is not happy with the presence of East India Company in India, and they are expressing their dissatisfaction by supporting the revolt of 1857. And one class of local rulers, one class of zamindar, was loyal to the presence of East India Company in India, क्योंकि उनको क्या हो रहा था, EIC के प्रेजेंस से गेन्स हो रहे थे, इकोनॉमिक गेन्स एंड कॉमर्शियल गेन्स, मेरी बात समझ गया। तो वो सपोर्ट कर रहे थे, एंड दे विल प्रोटेक्ट the Britishers during the revolt of 1857. They will proved as the breakwaters in the storm. ठीक है, अंग्रेजों को हमने भगा दिया होता है 1857 में ही, अगर वो थोड़े से जमींदार या थोड़े से लोकल रूलर्स अंग्रेजों के सपोर्ट में नहीं आए होते, मेरी बात समझ गए। तो 1857 तक तो सीन ये है कि अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे तैसे वैलिड नॉन वैलिड मीन से हिंदुस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश, और ये सब कौन कर रहा था, कंपनी कर रही थी, मेरी बात समझ गए। लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था, एक मैसिव रिवोल्ट था, ठीक है। दिस वाज अ ग्रेट एक्सप्रेशन of the accumulated grievances of the masses. These masses are dissatisfied by the EIC's rule in the last 100 years. पिछले 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल इंडिया में रहा था, इससे हिंदुस्तान के अलग अलग क्लासेस डिससेटिस्फाई थे, और उनका जो डिससेटिस्फेक्शन था, उनका जो गुस्सा था, डिससेटिस्फेक्शन था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, EIC रूल के अगेंस्ट, उसका एक मेजर एक्सप्रेशन है, ग्रेट एक्सप्रेशन है रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, और ऐसा लगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ही खत्म हो जाएगा 1857 में। दिस वाज दैट मच मैसिव एंड इंटेंस इन नेचर, ऐसा था। So what will happen after this revolt of 1857? Okay, now we are entering into the topic. After this revolt of 1857, now there are some important changes. And what are the changes here? So one is Queen Victoria's proclamation. One is what? Queen Victoria's proclamation. Queen Victoria's proclamation. And this proclamation was made on 1st November 1858. ये प्रोक्लेमेशन कब हुआ, 1 नवंबर 1858, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। और साथ ही साथ एक एक्ट भी आएगा, दैट इज एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ 1858। और देखो, मैं केवल वही पॉइंट्स बताऊंगा जो प्रिंसली स्टेट से जुड़े हुए हों, ठीक है ना। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन और एक्ट ऑफ 1858, इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ इंडियंस। तो उस डिससेटिस्फेक्शन को कैसे कम किया जाए, मेरी बात समझ गए। अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे, बट वो बहुत स्मार्ट थे, डिप्लोमेटिक थे, उनको पता था हिंदुस्तान की आवाम ने, हिंदुस्तान की जनता ने क्या किया है, रिवोल्ट किया है, और ये कोई छोटा मोटा रिवोल्ट नहीं है। जानबूझकर रिवोल्ट को डिमीन करने के लिए कॉलोनियल हिस्टोरियंस क्या लिखते हैं इसे, सेपॉय म्यूटिनी, बट इट वाज नॉट सेपॉय म्यूटिनी ओनली, मेरी बात समझ गए। नाउ दे वर नोइंग दैट इफ वी वांट टू मेक द ब्रिटिश रूल ओके परमानेंट इन इंडिया, सो वी नीड टू ब्रिंग सम इंपॉर्टेंट चेंजेस, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस चाहिए पॉलिसी में। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस, देखो कितना बड़ा यहाँ पे चेंज आ रहा है। व्हाट क्राउन सेज, क्राउन सबसे पहले क्या कह रही है, दैट नाउ EIC रूल हैज बीन एंडेड एंड नाउ ओके इंडिया इज अंडर क्राउन रूल। इट मीन्स नाउ द ब्रिटिश क्राउन इज द रूलर ऑफ इंडिया, नाउ द ब्रिटिश क्राउन इज द रूलर ऑफ इंडिया। अब ब्रिटेन का राजा या रानी ही इंडिया का राजा और रानी होगा। और क्या कह रहे हैं कि जो इंडियन सब्जेक्ट्स हैं, द इंडियन सब्जेक्ट्स will be treated like British subjects. Indian subjects will be treated like British subjects. यानी ब्रिटिश क्राउन क्या करेगा, जैसा व्यवहार, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन में होता है, वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में भी होगा। वी विल ब्रिंग व्हाट, responsible administration, responsible governance in India. We will bring what, responsive governance in India.
जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन में है वैसा इंडिया में होगा. इट मीन्स क्राउन इज ट्राइंग टू एश्योर यू दैट वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट विद इंडियन पीपल. इंडियन लोगों के साथ हम डिस्क्रिमिनेट करने नहीं जा रहे हैं. वी विल ट्रीट इंडियन सब्जेक्ट्स इन द सेम मैनर एज वी ट्रीट ब्रिटिश सब्जेक्ट्स. इंडियन सब्जेक्ट्स को हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा कि हम ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को ट्रीट करते हैं. यहां तक समझ में आया? ये क्यों है? टू अपीज यू. ठीक है. और लोगों का गुस्सा किस पे था? क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? डाइवर्ट कर दिया अटेंशन को. कहा भाई आईसी वाज रूलिंग फ्रॉम 1757 टू 1857. ये तो बहुत गलत बात है, ईआईसी को ऐसे रूल नहीं करना चाहिए. इतनी शिकायत है लोगों की, वी आर एंडिंग ईआईसी रूल इन इंडिया, अभी हम खत्म करते हैं ईआईसी रूल इन इंडिया. देखो कितने स्मार्ट हैं. लोगों का गुस्सा किससे था? ब्रिटिश रूल से. गवर्नमेंट ने क्या कहा? ये ब्रिटिश रूल नहीं है भाई, ये क्या है? कंपनी रूल. और अभी हम कंपनी की सारी राइट्स खत्म करते हैं. नाउ कंपनी विल नॉट रूल इन इंडिया. हु विल रूल? ब्रिटिश क्राउन विल रूल. और ब्रिटिश क्राउन जब रूल करेगा तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. यू विल बी ट्रीटेड लाइक द इंडियन पीपल. आगे चल के दादा भाई नौरोजी ने कहा, इन इंडिया द रूल ऑफ ब्रिटिश इज अन ब्रिटिश इन नेचर. अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इसका मतलब वादा झूठा था. आपने कहा था कि इंडियन सब्जेक्ट्स विल बी ट्रीटेड लाइक ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, बट बाद में दादा भाई नौरोजी ने कहा ऐसा नहीं हो रहा है. British subjects and British administration is a different kind of administration. And in India, the system of administration is very bad. The government is exploiting Indian people. So that is un-British rule. आगे चल के क्रिटिसाइज भी किया दादा भाई नौरोजी में. आपको पता भी होगा ये अन-ब्रिटिश रूल वाली कहानी. तो एक तो बात ये हो गई कि कंपनी रूल वाज एंडेड, एंड द सेकंड इज व्हाट? Crown will become the ruler of India. And what is the second point here? That is the very important thing. देखो क्राउन का क्या कहना है. ब्रिटिश क्राउन सेज दैट, देखो कंपनी रूल्ड इन इंडिया. सपोज दिस इज इंडिया, मान लेते हैं दिस इज इंडिया, एंड कंपनी रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1857. रूल किया कंपनी ने. अच्छा, कंपनी ने क्या किया? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पावर एंड एक्सपेंशन ऑफ पावर दोनों किया. इट मीन्स कंपनी डिड व्हाट? Company established its political control over territories of India. In 100 years में कंपनी ने क्या किया था? Suppose company had established control over Bengal, established control over Awadh, established control over Hyderabad, established control over Karnataka, established control over Jhansi. ऐसे बहुत सारे states पे कंपनी ने क्या किया था? Okay, company had established its control and influence. But there were many more territories in India which were still ruled by the local rulers, जहां पर कि अभी कंपनी उनको एनेक्स नहीं कर पाई थी. मेरी बात समझ गया ना? 1858 तक पिक्चर क्या है कि कंपनी ने हिंदुस्तान के काफी इलाके पे कब्जा कर लिया है, बट स्टिल देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर स्टेट्स एंड टेरिटरीज वेयर कंपनी हैड नॉट एस्टैब्लिश्ड इट्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. ठीक है ना? तो 1858 में पिक्चर क्या है? There are two kind of states. Okay, ये क्या हो गया? These states are the states where company has not established their political control. यहाँ पे कंपनी ने अपना political control establish नहीं किया. So there are two kind of states. These are hundreds of smaller states and territories. Hundreds of smaller states and territories where EIC had not still established its political control. It means these areas were still to be annexed. अभी इनको annex किया जाना बाकी था. This is the meaning, that these areas were still to be annexed. They were not annexed. They were still to be annexed. They were still to be annexed. इनको annex किया जाना बाकी था. And what about this state? Okay, this was already annexed. This was already annexed by EIC. This was already annexed by EIC. EIC ने पहले से annex कर रखा था. Now what Crown is saying? Crown is saying that these states which has already been annexed by company, now they will come under direct British rule. भाई जो हमने annex कर लिया है उसी पे हमारा अधिकार है.
मेरी बात समझ गया ना? एंड दोज स्टेट्स विच आर स्टिल नॉट एनेक्स्ड, अभी तक जो एनेक्स नहीं हुए, ओके, वी विल नॉट एनेक्स देम इन फ्यूचर. We are abandoning our policies of forceful annexation of states. We are abandoning the policies like doctrine of lapse. जिनको हमने एनेक्स नहीं किया है, वादा करते हैं फ्यूचर में कभी एनेक्स नहीं करेंगे. और हमारी जो ये उल्टी सीधी पॉलिसीज थी फोर्सफुल एनेक्सेशन वाली, इसको भी हम बंद करने जा रहे हैं. वाई क्राउन इज अनाउंसिंग दिस? क्राउन ऐसा क्यों कह रहा है? To appease these local rulers, to gain their future help and support for the permanent presence of British rule in India. They will be the loyal supporters of presence of British rule in India. That's why government is doing this. So this is what a kind of policy of appeasement. ये policy of appeasement है. So what happened? Now Crown says that this part or this territory will be called as British इंडियन प्रोविंस. इन्हीं को क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस विच वेर ऑलरेडी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश. दे आर कॉल्ड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोविंसेस. ठीक है, जब भी ये वर्ड आए प्रोविंसेस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. So they say that these areas will come under direct British rule. Now this area will be ruled by British Crown. इस पे किसका रूल होगा? ब्रिटिश क्राउन का. एंड व्हाट अबाउट दीज स्टेट्स? द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट ओके, वी विल नॉट एनेक्स, we will not annex the remaining states in future. In future we will not annex. we are abandoning we are abandoning the policies of forceful annexation like doctrine of lapse. They also said that we are abandoning the policies of forceful annexation like doctrine of lapse. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी फोर्सफुल एनेक्सेशन की पॉलिसी को छोड़ रहा है. इट मीन्स दीज स्टेट्स विल रिमेन इंडिपेंडेंट. दीज स्टेट्स विल रिमेन इंडिपेंडेंट इन फ्यूचर. ओके, it means now they will be what? Legally independent entities. Now they will be what? Legally independent entities. They will remain, okay, independent in future. They will be what? Legally independent entities. They will be ruled by local rulers. वहाँ का रूलर कौन होगा? लोकल रूलर. बट देर इज वन कंडीशन. एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है ये आपको समझना है. इन स्टेट्स को क्या कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? कि आप अगर रूलर हो तो अपने तरीके से रूल करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे. बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन. तुमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हे ब्रिटिश क्राउन, तुम ही मेरे माई बाप हो. ठीक है, वो कहते हैं ना, तो ये बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. यू विल हैव टू एक्सेप्ट द पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन. ये कंडीशन है. You are allowed to do administration in your own way, but you will have to accept, all these states will have to accept the paramountcy of British Crown. Right this, all these states will have to accept paramountcy of British Crown. All these states will have to accept the paramountcy of British Crown. ये सारे स्टेट्स को ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटेंसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ब्रिटिश क्राउन ही सर्वोच्च सत्ता है, हम उसके अधीन है. वी आर सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश क्राउन, बट स्टिल इन द मैटर्स ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर यू आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, नाउ व्हाई दिस ऑल चेंजेस वर मेड? ऑल दीज चेंजेस रिगार्डिंग प्रिंसली स्टेट्स वर मेड फॉर व्हाट रीजन? तो राइट, व्हाई, क्यों ऐसा किया गया? व्हाई इट वाज डन? सो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? This is a kind of policy of appeasement, right? This policy of appeasement. This is policy of appeasement. Here, Crown is appeasing princely states. Crown princely states को appease कर रहा है. Why?
appeasing, okay, to prevent any future revolt supported by these rulers. पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, to prevent any future revolt supported by these rulers. इन फ्यूचर अगर कोई भी रिवोल्ट होगा तो ये लोकल रूलर सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम रूलर बने रहेंगे, ठीक है। टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर रिवोल्ट दैट इज सपोर्टेड बाय दीज रूलर्स। और दूसरा क्या है, वंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल अनाउंस दिस पॉलिसी, व्हाट विल हैपन, these native states will become loyal supporters of presence of British rule in India for future. आने वाले भविष्य में हमेशा वो भारत में ब्रिटिश रूल को बनाए रखने के मुद्दे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका इंडिपेंडेंस हमेशा बना रहेगा। मेरी बात समझ गया ना? सो राइट द सेकेंड पॉइंट दैट इन दिस वे these native states will be loyal supporters. In this way, these native states will be loyal supporters for the presence of British rule in India in future. They will be the loyal supporters for the presence of British rule in India in future. हमेशा वो फ्यूचर में ब्रिटिश रूल को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। डिवाइड एंड रूल है कि नहीं बताओ? ब्रिटिश प्रोविंसेस के लोग जब एक्सप्लॉइट होंगे तो अपोज करेंगे, और गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि प्रिंसली स्टेट्स के रूलर हमारी प्रेजेंस को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये आया 1858 के बाद चेंज, गॉट इट। तो नाउ देयर आर टू कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। तो जो हम प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहे हैं, दीज आर द प्रिंसली स्टेट्स, ये वही प्रिंसली स्टेट्स हैं। अब इसमें भी देखो कई कैटेगरीज हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। सो राइट हियर वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसमें भी क्या है, वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स की भी वेरियस कैटेगरीज हैं, और वो कैटेगरीज क्या है, व्हाट आर दीज कैटेगरीज? देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिवाइडिंग दीज कैटेगरीज, okay, different parameters, okay. So I am discussing the first parameter. So देखो, suppose you all are the rulers of princely states. Now tell me, are you completely free to administer your state? Yes or no? Yes, you are completely free to administer your state in your own way, right? Now what British government will do, which will say, British government will say that if you need our help and support, we are always ready to help and support you. ध्यान से समझना इस बात को। सपोज वी ऑल आर द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और इसमें विपिन को ऐसा लगता है कि आई नीड द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इन एडमिनिस्ट्रेशन। So Vipin will go to British administrators, governors, Governor General. He will meet them, and he will sign an agreement with British administrators कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट हमेशा मदद करने के लिए तैयार खड़ी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ठीक है हम तो आपकी हेल्प करने के लिए ही है। तो एक स्टेट्स की कैटेगरी ऐसी है जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तरीके से रूल कर रहा है, दे आर नॉट टेकिंग हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेकेंड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, वहां पे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग, ठीक है ना। So there is one category of a state who are completely independent in administering themselves, अपने तरीके से रूल कर रहे हैं। दूसरा कैटेगरी है नेटिव स्टेट्स का जो खुद ही भाग के चले जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि भाई मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, थोड़ा पैसा वैसा दे दो, थोड़ी हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो एडमिनिस्ट्रेशन में। गवर्नमेंट कहेगी पहले डॉक्यूमेंट साइन करो, डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, बट वर्चुअली हु इज हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग यू इन योर एडमिनिस्ट्रेशन? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा मान लो एक और स्टेट के रूलर रवि है, ओके। रवि वेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने कहा हमें हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंसेस की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट विल से सब कुछ करेंगे, बट इस केस में आपकी ऑटोनॉमी का लेवल ज़्यादा रहेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेरी बात समझ गया ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया,
तरीके से 1858 के बाद ये कहा कि नेटिव स्टेट्स आर फ्री टू रूल। इसमें भी कई कैटेगरीज बन गई। कुछ स्टेट्स जिनके पास खूब ठीक ठाक रेवेन्यू आता था, उनको हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ी, एंड दे वर रूलिंग इन एन इंडिपेंडेंट मैन। दूसरे कुछ स्टेट्स थे जिनको थोड़े बहुत हेल्प एंड सपोर्ट की जरूरत थी, so they will become the category 2 states where the government is helping them in maintaining their administration. तीसरा कैटेगरी किसका है? They will also need financial help and support, infra development and administrative help and support. So those states will have very little autonomy. उनकी ऑटोनॉमी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। अब एक नॉर्मल सी बात बताओ, अगर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है और उस इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कोई प्रिंसली स्टेट सपोर्ट करना चाहता है, तो किस कैटेगरी का प्रिंसली स्टेट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करेगा? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3? कैटेगरी 1। ठीक है। अगर आपने अंग्रेजों से हेल्प ले ली, सपोर्ट ले ली, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में उनका इंटरफेरेंस है, इकोनॉमी में उनका इंटरफेरेंस है, तो आधा अंग्रेज तो आपको बना ही चुके हैं। कहाँ से आप इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सपोर्ट करोगे? नाउ आई विल टेक हेल्प ऑफ सम स्लाइड्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर। आज की क्लास को पूरी कहानी की तरह समझना तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, पूरा का पूरा सेशन। ठीक है ना? ये नहीं सोचना है कि चलिए, तो आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ सम स्लाइड्स एंड देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, देखो क्या, look at this slide images. What you see, British displayed their power in more subtle ways too, such as the use of British India postage stamps showing British monarchs but overprinted with the princely state's name, right? Overprinted with the princely state's name. And there was another even more public display of the British way over the princess. ठीक है, ये तो चतुर रामलिंगम वाला लैंग्वेज हो गया। अब अपने तरीके से समझो। लुक एट दिस पोस्टल इमेज। बैक साइड में जो इमेज है, इसमें क्वीन की फोटो दिख रही है। ठीक है, हालांकि वो क्वीन भूतनी की तरह ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो क्वीन की तस्वीर दिख रही है ना आपको? ये ब्रिटिश क्वीन है, ब्रिटिश इम्प्रेस है। यहाँ पे कौन है? ब्रिटिश किंग है। यहाँ पे कौन है? ब्रिटिश किंग है। बट इसके फ्रंट साइड में क्या लिखा हुआ है? ग्वालियर स्टेट। फ्रंट साइड में क्या लिखा हुआ है? पटियाला स्टेट। फ्रंट साइड में क्या लिखा हुआ है? जिंद स्टेट। फ्रंट साइड में क्या लिखा हुआ है? ग्वालियर स्टेट। अब ये बताओ कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अगर पोस्टल स्टैम्प्स रिलीज कर रही है और उस पोस्टल स्टैम्प्स पे इन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के प्रिंसली स्टेट्स को मेंशन किया, इट मींस व्हाट? दे आर गिविंग रेस्पेक्ट टू द प्रिंसली स्टेट्स। वो कैसे प्रिंसली स्टेट्स को रेस्पेक्ट देंगे? बताओ, कौन से प्रिंसली स्टेट्स को रेस्पेक्ट देंगे? कॉमन सेंस, राइट? हु आर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और यही नहीं, आगे क्या हो रहा है देखो। द ब्रिटिश ट्राइड टू एंग्लिसाइज द प्रिंसेस। ठीक है, लंदन से ट्यूटर उटर भिजवा दिया कि ट्यूशन पढ़ाओ। ठीक है, ठीक है, ट्यूटर आ गई, मैडम आ गई पढ़ाने के लिए। अब इंग्लिश बोलना सीख रहा है प्रिंसली स्टेट का रूलर, उसके बच्चे इंग्लिश बोलना सीख रहा है। फिर रेजिडेंट भी है उनके स्टेट में। रेजिडेंट कहेगा यार यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, लंदन भेज दो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, वहाँ स्कूल में हम एडमिशन करा देते हैं। अब आप बताओ कि व्हेन प्रिंसली स्टेट्स रूलर्स, ओके, they will start learning English, they will, it means what? They will start practicing British customs, traditions. They will send their sons and daughters to get education in London. ये क्या है? This is an attempt to anglicize the princess. पूरा कल्चर ही बदल दो, anglicize the princess. Continuing to impose a permanent resident. उनके कोर्ट में क्या रहेगा? एक परमानेंट रेजिडेंट रहेगा। एंड इनकरेजिंग देयर एजुकेशन और दैट ऑफ देयर चिल्ड्रन द यूज ऑफ ब्रिटिश ट्यूटर्स और इवन पीरियड्स ऑफ स्टडी इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड भेजो, ब्रिटिश ट्यूटर्स को लगाओ, उनको इंग्लिश सिखाओ, एंग्लिसाइज करो। ओके, स्पेशल कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड अराउंड इंडिया so their future rulers and administrators would be better integrated into the British Raj. स्पेशल इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए। अच्छा, उस इंस्टीट्यूट में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? एलीट क्लास के, प्रिंसली स्टेट्स के। अच्छा, उनको किस तरह की एजुकेशन दी जाएगी कि आगे चल के वो इंडिया में ब्रिटिश रूल के परपिचुइटी को क्या कर सके? सपोर्ट कर सके। मेरी बात समझ गया ना? तो ब्रिटिश बड़े होशियार थे। इसको कहते हैं अपना कल्चर प्रमोट करना। ठीक है,
और इसके बाद क्या है कि प्रोमिनेंट प्रिंसेस लाइक महाराजास वेर इनकरेज टू विजिट ब्रिटेन, उनको ब्रिटेन वगैरह बुलाया जाता था और खूब उनकी रेस्पेक्ट की जाती थी। उनको नहीं पता था कि रेस्पेक्ट क्यों की जा रही है, ठीक है, उनकी खूब रेस्पेक्ट की जाती थी। दे वेर लायनाइज्ड बाय हाई सोसाइटी इन लंदन एंड ऑन द कॉन्टिनेंट। जब वो लंदन जाते थे तो पूरे वहाँ के अमीर लोग इकट्ठे हो जाते थे, पार्टी वार्टी होती थी, दावतें होती थी, डांस वांस होता था। प्रिंसली स्टेट के रूलर को लगता था ब्रिटिश कितनी रेस्पेक्ट हमें दे रहा है, कितनी रेस्पेक्ट दे रहा है। अब बताओ इतनी इज्जत अगर आपको मिलेगी तो यू विल सपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। ये पॉलिसी क्या है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। इसके बाद क्या है, रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकल मीन्स एंड स्टेटस दे वेर यूनिवर्सली रिगार्डेड एज एक्सोटिक, पावरफुल एंड फैबुलसली रिच फैंसीज विच दे डिड नथिंग टू डिस्पेल। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि उनको इंडिया में खूब रेस्पेक्ट दो, स्टैंप वगैरह पे उनके नाम लिखवाओ, फोटो लगाओ, लंदन बुलाओ, लंदन में बुला के खूब रेस्पेक्ट दो। इससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे these princely states will be the loyal supporters of presence of British rule in India। कुछ आइडिया आया स्टोरी से। अब एक और बात आपको बताता हूँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये टॉपिक वैसे है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए मैंने चूज किया। आई विल सेलेक्ट दोज टॉपिक्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो जो कॉम्प्लिकेटेड पोर्शंस है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, मैं वो सारे टॉपिक्स लेके आऊँगा एक्सक्लूसिव लेक्चर सीरीज में, जहाँ पढ़ने पे आपको नींद आने लगती है, जिसके क्वेश्चंस को रटने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यूपीएससी वो चैप्टर्स को चूज करती है, तो आई विल डिस्कस दोज टॉपिक्स ओनली। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ एक्सक्लूसिव लेक्चर सीरीज। नाउ एक और मज़ेदार कहानी सुनो। क्या कहानी है, तो देखो, आफ्टर 1858, आफ्टर 1858 व्हाट हैपेंस, टेक्निकली ब्रिटिश क्राउन is interfering in the matters of princely states or not? Technically no, non interference, non interference। देखो, इंटरफेरेंस का मतलब होता है चेक एंड बैलेंस। जैसे आपके पेरेंट्स थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है, पता लगाते रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना, सब ठीक ठाक चल रहा है, ओके, और उस चेक एंड बैलेंस की वजह से आप काम भी ठीक करते हो, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर वो चेक बैलेंस खत्म कर दिया जाए, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस ला दिया जाए पूरी तरह से, तो आप में से कितने लोग सही दिशा में जाओगे? कुछ लोग तो डाइवर्ट हो ही जाओगे ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। यही हो रहा है, द सेम इज हैपनिंग हियर। आफ्टर 1857 there was no any system of, right this point, there was no any system of check and balances, there was no any system of check and balances on native state rulers। अगर नेटिव स्टेट का रूलर खुद ही जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। अगर आप खुद गए तो इफ यू विल गो एंड मीट देम तो दे विल कम टू इंटरफेयर, अदरवाइज दे विल नॉट इंटरफेयर। so there is no any system of check and balances। now what will happen, अगर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, so in this case there will be two class of rulers, okay। so majority of the rulers, I am writing here majority of the princely states and their rulers, majority of the princely states and their rulers। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि वो क्या करेंगे 1858 के बाद। अब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, एंड द पीपल इन दीज स्टेट्स आर पेइंग देम रेवेन्यूज। इनके पास रेवेन्यू तो आ रहा है, पैसा खूब आ रहा है, दे आर गेटिंग रेवेन्यूज, दे आर गेटिंग रेवेन्यूज। And you will be surprised to know that many of these princely states were collecting revenue from the people which was higher than the revenue which was collected in British provinces। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से भी ज्यादा रेट ऑफ रेवेन्यू उनका था, वो ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो पैसा तो खूब आ रहा है इनके पास, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड they will start spending this revenue on luxuries and comfort of life, luxuries and comfort of life। पैसा कहाँ खर्च होगा, luxuries and comfort of life। जैसे सबसे उनका पसंदीदा काम क्या होगा, शिकार पार्टीज, ठीक है, महीने में 20 दिन वो कहाँ रहते हैं, शिकार पार्टीज में शिकार कर रहे हैं, ठीक है। प्लस देयर आर मेनी अदर थिंग्स वेयर they are spending their money and they are less focused, they are not much focused
अबाउट द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर स्टेट। वहाँ वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। दे आर कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, ओके, दे आर टेकिंग हाई टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, एंड द प्रॉब्लम्स लाइक फोर्स लेबर, राइट, and negligence towards administration, all these problems were faced by the people who were living in these states. ठीक है, it means they are responsible rulers. This category of rulers are responsible or irresponsible, irresponsible। और ये जितने बिगड़ैल हैं, ये किसकी टीम में रहेंगे आप बताओ? ब्रिटिश, ठीक है, ओके, दे विल ज्वाइन विच टीम? ब्रिटिश टीम, ये ब्रिटिश टीम में चले जाएंगे। अच्छा, इसके बाद देर इज अनदर क्लास ऑफ रूलर्स, दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ रूलर, दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ रूलर। इस सेकेंड क्लास ऑफ रूलर्स में देर आर, ओके, देर आर ऑल्सो प्रिंसली स्टेट्स, ओके, and the rulers of these princely states were, okay, very much responsible towards the task of administration. They were very much responsible towards the task of administration, okay. They were spending revenues for the welfare of people, लोगों की welfare में revenues को भी खर्च करते थे। They were also spending money for the welfare of the people, okay. They also initiated so religious reforms. They also initiated religious reforms in their state. They also initiated religious reforms in their state, okay. Right, next point, they also promoted education in their state. They also promoted education in their state. They also promoted education in their state, okay. It means these are enlightened rulers. These rulers are enlightened rulers. ये enlightened rulers हैं. Now tell me one thing, that when in India growth of nationalism will take place, growth of nationalist sentiments will take place, and when Indian national movement will start, what is the possibility? Which class of rulers will come and support the Indian national movement? First or second? Second. Okay. Okay. So always you have to keep it in mind that कभी भी प्रिंसली स्टेट्स को हम एक ही तराजू में मतलब रख के नहीं तोल सकते। मेरी बात समझ गए ना? दो तरह के प्रिंसली स्टेट्स थे, एक जो ब्रिटिश पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश प्रेजेंस को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी सपोर्ट करेंगे। सो देयर वर टू कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टिल दिस ईयर। नाउ I am entering into the another development. 1858 and other issues are clear. Now from this period 1857 revolt onwards, 1857 revolt onwards, and between this period 1885 is known for what? Indian National Congress formation, INC formation, 28 December 1885, and this Indian National Congress was a pan India political party, and this was a very important thing. Before this, in India there was not any all India political party. All India political party nahi thi. Yes, growth of nationalism was there. Growth of nationalism was taking place. Nationalist feelings and sentiments were being consolidated. Growth of nationalism taking place. Nationalist feelings and sentiments were being consolidated, okay. At regional level, at regional level, regional political associations also came into existence, okay. In Bengal, in Madras, in Bombay, at regional level, regional political associations also came into existence. Political association का बनना क्या दिखलाता है कि our level of political awareness is increasing. We are uniting for a cause, and that's why regional political associations were formed. और ये journey जो है, this journey started from 1830s onwards. ये journey कब से start है? From 1830s onwards, and finally
The culmination of all these developments, and finally what we see is the culmination of all these developments will be in the form of Indian National Congress. INC will form. Indian National Congress will form. Okay? And once Indian National Congress is formed, so this Indian National Congress is what? It is a kind of organized expression of nationalistic sentiments in India. It was a kind of organized expression of nationalistic sentiments in India. इंडिया में जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स थे उनका ये क्या है, एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन है. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी से INM, Indian National Movement, so the period that we count is from 1885 to 1947. इंडियन नेशनल मूवमेंट का पीरियड हम कब से कब तक काउंट करते हैं? दिस इज द रीजन दैट we count the period of Indian national movement from 1885 to 1947. This is the period of Indian national movement from 1885 to 1947, right? Period of Indian national movement. What was the name of the topic? Role of princely states during Indian national movement. Topic starts now. कितना टाइम हो गया? 1 hour has passed. We were learning the basics. Now the topic will start. Role of princely states during the Indian national movement. Now this is the Indian national movement phase. 1885 to 1947. 1947. देखो कभी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं भागना. जब मैं वीडियो शूट करता हूँ और यूट्यूब पे डालता हूँ, डेली मुझे सजेशंस मिलते हैं, सर 10 मिनट्स के वीडियो बनाइए. ठीक है, तो मैंने कहा इससे बढ़िया मैं डांस वांस सीख लूँ. ठीक है, वही 10 मिनट्स 5 मिनट्स में हो सकता है. कैसे कोई 10 मिनट्स में पढ़ा के डालने का क्या मतलब है? ठीक है, तो दिस विल नॉट हैपन एंड देयर विल बी नो एनी बेनिफिट टू यू आल्सो ना. अगर आपने 1-2 घंटे 3 घंटे बैठ के टाइम दिया तो यू विल लर्न समथिंग. ठीक है, यू विल गेन इट. ओके, यू विल फाइंड सम बेनिफिट्स इन योर एग्जाम. ठीक है, तो 1885 से 1947 में हियर वी विल हैव टू एक्सप्लोर princely states, their role, the related issues during Indian national movement. ठीक है, यही एक्सप्लोर करना है. And before exploring, I will just give a string of facts or a string of events, and that I will use to relate while discussing. For example, mass movement started in India. Okay, we see mass movements in India. Popular mass movements in India. Whenever we talk about the popular mass movements in India, so first such popular mass movement was स्वदेशी movement. पहला पॉपुलर मास मूवमेंट कौन सा है? स्वदेशी मूवमेंट. आपने नाम सुना भी होगा, यू मस्ट हैव heard this name. This is a very popular topic, Swadeshi movement. This was one such most popular movement, Swadeshi movement, right? The second movement here, the popular mass movement, was non-cooperation movement. Non-cooperation movement, NCM, you can write. In short, this was NCM, and the time period was 1920 to 22. This was the second most popular mass movement. Okay. The third most popular mass movement here was CDM, that is civil disobedience movement. Civil disobedience movement. The time period was 1930 to 34. Okay, I have written like this for a particular reason. Civil disobedience movement 1930 to 32-34, right? Then there will be another movement, that is Quit India movement. Quit India movement, and the time period of this Quit India movement is 1942 to 44-45. This was the time period of Quit India movement, right? These are the chain of events. Okay, these are the most important events. Now we need to understand that princely states or their rulers, they supported in these popular mass movements or not. अच्छा देखो, this Swadeshi movement was confined to Bengal region only.
In technical sense, it was confined to Bengal region only, right? Officially it was confined to Bengal region only. Unofficially it was extended to many other parts of India, but official extension इसका क्या था? बंगाल रीजन ही था. ठीक है. So in technical sense, when we say all India movement, first all India movement, so that will be the non cooperation movement. ठीक है ना. फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे, so that is non cooperation movement. This was the first all India movement, and it was supported by Indian National Congress also. It has got support of Indian National Congress, and here this movement was also an example of Gandhian movement. ये और किस मूवमेंट का एग्जाम्पल है? गांधीयन मूवमेंट का एग्जाम्पल है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गांधीयन मूवमेंट. ओके, नाउ हियर वी विल हैव टू लर्न दिस टॉपिक वेरी स्मार्टली. एक एक चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तभी टॉपिक समझ पाएंगे. जैसे व्हेन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन 1905, बेसिकली दिस वाज एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट. ये मूवमेंट क्या है? एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट. It means this movement started on the issue of opposing the decision that was taken by the government, the decision of partition of Bengal. Curzon was the governor general at that time. Okay, and why Curzon took this decision? Okay, he was the viceroy. Curzon took this decision because he want to create a gap between Hindus and Muslims. He wanted to divide Hindus and Muslims. He wanted to break the unity of people of Bengal, because at that time Bengal was the center or epicenter for the growth of nationalistic ideas and sentiments. Bengal उसका सेंटर बना हुआ था. RPAs रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी सबसे पहले कहाँ बने? बंगाल में. सोशियो पॉलिटिकल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी सबसे पहले कहाँ शुरू हुए? बंगाल में. रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस का सेंटर भी सबसे पहले क्या था? बंगाल ही था. सेपॉय म्यूटिनी हुआ वैसे मेरठ से, बट शुरुआत क्या है? बैरकपुर. ठीक है. तो बंगाल वाज द सेंटर, एपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज, एंड कर्जन थॉट दैट इफ वी विल टेक दिस डिसीजन, इफ वी विल ब्रेक द यूनिटी ऑफ पीपल ऑफ बंगाल, तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स विल बी ended, and in this way there will be no threat for the presence of British rule. But it was miscalculation of Curzon. Curzon का क्या था? Miscalculation. लोगों ने अपोज किया, लोग सड़क पे आ गए. Okay, Hindus and Muslims, okay, both will stand together and they will oppose this decision of government, and in this way a movement started which is known as Swadeshi movement. Now tell me, this movement, do you consider that this movement is a threat for the presence, future presence of British rule in India? Yes. मूवमेंट सिंबल किस चीज का है? एनलाइटनमेंट का है, कि लोग अपने राइट्स को लेके अवेयर हो रहे हैं, नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को पहचान रहे हैं. तो अब यहाँ पे देखो, इस समय क्या है? यूनिटी को तोड़ना है, और यूनिटी का अगर तोड़ना है तो क्या करो? प्रिंसली स्टेट्स का सपोर्ट गेन करो. ध्यान रखो इस बात का. ये बीमारी मूवमेंट की अंग्रेजों के लिए क्या है? बीमारी है. उनको लगता है कि अरे यार ये मूवमेंट शुरू हुआ, धीरे धीरे ये दूसरे एरियाज में एक्सपेंड होगा और इससे इंडिया में कॉलोनियल रूल को खतरा हो सकता है. नाउ व्हाट दे विल डू? ओके, they will try to gain the support of princely states also. Now for this I will share one slide, and that is the statement of Curzon. This we will see here the statement of Curzon. Curzon का statement है, and the statement is very interesting, and reading this statement you can easily okay guess the entire scenario. पहले Curzon के statement के पहले भी आ जाओ. Curzon तो 1905 का स्टेटमेंट है. दिस पॉइंट, क्वीन विक्टोरिया ओके वाज डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877. ये तो रिवोल्ट के बाद वाली घटना है ना. क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877. अब वो भारत की भी रानी है, केवल ब्रिटेन की रानी नहीं है. और इन 1877 देयर विल बी अ ग्रैंड दरबार, एक दरबार भी इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड. बहुत फंक्शन होगा यहाँ पे, काफी पैसे खर्च होंगे उसमें. Now what she is saying, that we shall respect the rights, dignity and honor of native princes. ध्यान से समझना है इस चीज को. What she is saying, that we shall respect
आर यू गेटिंग दिस ऑन द स्क्रीन? पढ़ पा रहे हो? वी शैल रेस्पेक्ट द राइट्स, डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ नेटिव प्रिंसेस एज आवर ओन। यानी कि जो नेटिव प्रिंसेस हैं, जो रियासतें हैं, इनके रूलर्स, ओके, इनके राजकुमार, इनकी राइट्स, डिग्निटी और रेस्पेक्ट को उतना ही इंपॉर्टेंट समझना है जितना हम अपनी राइट्स, डिग्निटी को इंपॉर्टेंट समझते हैं। दे शुड एंजॉय दैट प्रॉस्पेरिटी एंड दैट सोशल एडवांसमेंट। दीज local states rulers, native state rulers should enjoy prosperity and the social advancement secured by internal peace and good governance। ये एक हिंट है कि हम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। स्टैम्प्स की चीज़ें मैं दिखा ही चुका हूँ आपको, एंग्लिसाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिखा चुका हूँ। एंड वाई व्हाट लॉर्ड कर्जन इज सेइंग, लॉर्ड कर्जन क्या कह रहा है? ऑफिशियल ब्रिटिश पॉलिसी वाज टू रिगार्ड प्रिंसेस नॉट एज रेलिक्स but as rulers, not as puppets, but as the living factors in the administration। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कर्जन ने कहा, ये कोई ऐसे वैसे आदमी का स्टेटमेंट नहीं है। ही वॉज द वायसराय, और वायसराय कौन होता है? वायसराय इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और क्या कह रहा है वायसराय कि नेटिव स्टेट्स के लिए पॉलिसी हमारी क्या है कि जो प्रिंस हैं, नेटिव स्टेट के रूलर्स हैं, दे आर नॉट रेलिक्स बट एज द रूलर्स। उनको असली रूलर के रूप में ट्रीट करना, उनको पपेट नहीं समझना है। दे आर लाइक द लिविंग फैक्टर्स इन द administration। It means the government is giving much importance to these native state rulers so that in future they could get their help and support। मेरी बात समझ गया? फ्यूचर में उनको क्या मिलेगा? हेल्प एंड सपोर्ट। तो दिस इज कर्जन। तो देखो, जैसे ही इंडिया में मास मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोशिश और ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या करना है? प्रिंसली स्टेट्स का हेल्प एंड सपोर्ट गेन करना है। तो कर्जन का स्टेटमेंट क्यों दिया मैंने? क्योंकि देयर इज पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 to 08। पार्टीशन ऑफ बंगाल डिसीजन टेकन बाय कर्जन। इट वाज कर्जनियन मिसकैलकुलेशन। मूवमेंट हो गया, और एट द सेम टाइम कर्जन इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट टू गेन द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स अगेंस्ट द ग्रोइंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और वो क्लियरली कह रहा है कि ये ब्रिटिश पॉलिसी है भाई, ठीक है, हमें इनका हेल्प और सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। मेरी बात समझ गया? ऑफिशियल पॉलिसी आपने समझा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम रिलेटिंग हियर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, स्वदेशी मूवमेंट तो ठीक है, इट वॉज कन्फाइंड ऑफिशियली टू द बंगाल रीजन ओनली, बट व्हाट अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑल इंडिया मूवमेंट, और इस मूवमेंट को लीड कौन कर रहा है? गांधी। साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों को परेशान किसने किया? गांधी ने। एंड नाउ गांधी इज लीडिंग दिस मूवमेंट। अंग्रेज कहते यार गांधी आ गया क्या, ये वही है क्या साउथ अफ्रीका वाला? हाँ भाई, ये तो वही यार, बहुत परेशान करेगा, ठीक है। इसकी जो सत्याग्रह और अहिंसा की टेक्निक है, ये बहुत भारी पड़ जाती है हमें। कुछ तो सॉल्यूशन निकालो, मेक दिस मूवमेंट वीकर। दिस वाज द फर्स्ट इंडियन ग्रेट मास मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट इट वाज द फर्स्ट ग्रेट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ग्रेट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया, ओके। And we see here all class participation, all class participation। We see here Hindu Muslim unity, all class participation, women participation, remarkable participation of women, remarkable participation of students। So this movement, is this movement a threat for the presence of British rule in India? Yes, ये threat है। अब इस threat को कैसे काउंटर करोगे? तो ध्यान से समझो इस बात को। एक तरफ ब्रिटिश प्रोविंस है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, दूसरी तरफ नेटिव रूलर्स है। अगर नेटिव रूलर्स के सपोर्ट को आपने ले लिया, तो अंग्रेजों को यह लग रहा है कि नेटिव रूलर्स अपने राज्य की जनता को मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं देंगे। मेरी बात समझ गए? इफ दे विल गेट द सपोर्ट ऑफ नेटिव रूलर्स, व्हाट दीज नेटिव रूलर्स विल डू? दे विल नॉट अलाउ देयर सब्जेक्ट और द पीपल टू पार्टिसिपेट इन दीज पॉपुलर मास मूवमेंट्स। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि और अपनी पॉलिसी को मजबूत बनाते हैं, नेटिव स्टेट्स के सपोर्ट को लेके आते हैं। एंड व्हाट हैपेंस हियर, ओके, देखो, दीज थिंग्स आर साइमल्टेनियस, अलग अलग करके हम नहीं समझ सकते। Here we see non-cooperation movement. The time period of non-cooperation movement is 1920 to 1922,
और यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो प्रीलिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हियर वी आर रिलेटिंग दिस विथ कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, तो देखो, ओके, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, अ बॉडी वॉज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। वो क्या कहा जाता है? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, दिस बॉडी वॉज फॉर्म्ड, ओके, in the year 1921. Chamber of Princes, this body was formed in the year 1921, okay, Chamber of Princes। और ये क्या है? It was a यहाँ पे princess means we are talking about the rulers of native states और princely states, Chamber of Princes। और ये जो बॉडी है, this body was a consultative, read this body was a consultative and advisory body। ये बॉडी क्या है? कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी। दिस बॉडी इज अ कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, consultative and advisory body। Who has created this body? British had created this body। British had created this body। अब बताओ कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनने के बाद सारे प्रिंसली स्टेट्स इस बॉडी के हिस्सा होंगे, तो उनसे बात करना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि नहीं? जैसे आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप क्यों बनाते हो? मेरी बुराई करने के लिए? मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग। ग्रुप बन जाएगा तो एक आदमी का जो आइडिया है आपके साथ कम्युनिकेट करना कितना आसान हो जाएगा। गॉट इट? द कम्युनिकेशन विल बिकम ईजियर, ओके। तो दिस इज द आइडिया ऑफ ग्रुप। ऐसा ही ग्रुप है ये, बट क्या है? कंसल्टेटिव ग्रुप है, एडवाइजरी बॉडी है। किसने बनाया है? ब्रिटिश क्राउन ने बनाया है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? 1927, राइट दिस, 1927, okay, 1927, viceroy was Lord Irwin, right this, Lord Irwin was viceroy, Lord Irwin was viceroy, and Lord Irwin, okay, appointed a committee that was known as Butler Committee। ये prelims का question है, read this, Lord Irwin appointed a committee, Lord Irwin appointed a committee, and what was the name of this committee? The name of this committee was Butler Committee। Lord Irwin appointed this committee. The name of this committee is Butler Committee। Year is 1927। Mark कर लेना, this information is important for prelims। Year is 1927, Butler Committee। The chairman of this committee was Sir Harcourt Butler। The chairman of this committee was Sir Harcourt Butler। Harcourt Butler was the chairman, and two members of this committee were Sidney Peel and William Holdsworth। Two members of this committee were Sidney Peel plus next name is William Holdsworth। William Holdsworth। William Holdsworth, okay, these are the two members of this committee, Sidney Peel and William Holdsworth, right? That is Butler Committee। Who appointed? Lord Irwin appointed, okay. Who was the chairman? Harcourt Butler was the chairman। How many members were there? 3 members were there, okay, including this chairman। याद रखना है सारे फैक्ट्स को। हरकोर्ट बटलर, सिडनी पील एंड विलियम हॉल्सवर्थ। नाउ किसी भी कमिटी का कोई पर्पस होता है, so what is the purpose of this committee? Write this point, what is the purpose of this committee? Purpose क्या है? Purpose of this committee, right? The purpose was to clarify the relations between, the purpose was to clarify the relations between, to clarify the relations between British power in India and the rulers of princely states, between the British power in India, between the British power in India and the rulers of princely states। That was the purpose,
to clarify the relations between the British power, or you can also write the paramount power, that is British power, to clarify the relations between British power and okay princely states. इनके बीच रिलेशंस कैसा होना चाहिए, मेरी बात समझ गया ना? इसी बात की रिकमेंडेशन देनी थी किसको? बटलर कमीशन, टू एग्जामिन द रिलेशंस बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में अभी रिलेशन कैसा है और कैसा होना चाहिए, ओके, what which kind of relations should be there between these two. So recommendations, now the second point is what are the recommendations. Now recommendations क्या है, what are the recommendations? Now write some points. Right, recommendation number 1, okay, the British government should improve its relations with Indian states. The British Indian government should improve its relations with princely states. It should improve its relations with princely states. Princely states के साथ relations improve करने चाहिए. Second point, British Paramountcy will preserve these princely states. British Paramountcy will do what? Will preserve these princely states. British Paramountcy will preserve these princely states. Okay, will preserve these princely states. Third point, British Paramountcy will also protect. British Paramountcy will also protect. British Paramountcy will also protect the structure of these princely states. Preserve और दूसरा क्या है? Protect. British Paramountcy will also protect the structure of these princely states. These princely states. और यहाँ पे protect का मतलब बहुत खतरनाक है. British Paramountcy will also protect these princely states. अब देखो बताऊंगा protect का मतलब, बट यहाँ देखो, यहाँ मूवमेंट कौन सा चल रहा है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इस मूवमेंट में डिमांड क्या है? स्वराज विद इन 1 ईयर. हमें क्या चाहिए? स्वराज. स्वराज मीन्स व्हाट? सेल्फ रूल. और जब सेल्फ रूल आएगा तो ब्रिटिश रूल कम हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा ना. तो यहाँ पे डेफिनेशन के मतलब अलग है. स्वराज और ये सारी डेफिनेशंस क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे. सो द ऑब्जेक्टिव वाज स्वराज विद इन 1 रूल. और दिस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक्सप्रेशन है किस बात का? एक्सप्रेशन है ग्रोइंग नेशनलिज्म इन इंडिया. और आज अगर नेशनलिज्म is growing, what does it mean? It means that people will certainly make a demand, and that will be what? Demand for India's independence. आने वाले समय में लोग मांग करेंगे कि हिंदुस्तान को क्या करो? आजाद कर दो. और इसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918. इसके बाद हुआ था पेरिस पीस समिट 1919. And when US supported Britain in First World War, so US had also emphasized that the rights of self-determination must be given to the people in the colonies. कॉलोनी में रहने वाले लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना ही चाहिए. ये बात किसने कहा था? यूएस ने कहा था. और जब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगा तो ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हमें किस ओर ले जाएगा? आज़ादी की ओर ले जाएगा. मेरी बात समझ गए? पूरी की पूरी कहानी ये है. गवर्नमेंट नोज ऑल दीज थिंग्स दैट इन इंडिया दीज नेशनलिस्ट मूवमेंट्स आर द सिंबल्स ऑफ ग्रोइंग नेशनलिज्म. लोग यूनाइट कर रहे हैं. लोग आने वाले समय में आज़ादी की मांग कर सकते हैं, पूरी आज़ादी, कंप्लीट फ्रीडम की मांग कर सकते हैं. Right now they are demanding for Swaraj under this structure, but in future they can demand for complete freedom. So in that case we will try to obstruct that demand with the help and support of princely states. Not only princely states, with the help and support of Muslim League also. उसके लिए दूसरी वीडियो लेके आएंगे. कॉम्युनलिज्म और इंडिया का पार्टीशन हुआ कैसे. मेरी बात समझ गया ना? तो यहाँ सिर्फ एक डायमेंशन पे हम बात कर रहे हैं. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अलग अलग डायमेंशंस हैं. When the British are promising to protect and preserve the structure of princely states,
This is also a part of their divide and rule policy. When the British government is appeasing these princely states, this is also the part of their divide and rule policy. When the British government will promise to protect the minority rights at all conditions, in all conditions, when they will promise that we will never compromise with the rights of minorities, we will give equal, we will give support to the voice of minorities, we will support the Muslim League demands, they are following which policy? Policy of appeasement. And these two policies, one policy of appeasement was followed in the case of princely states, one policy of appeasement was followed with Muslim League. This shows what? The expression of divide and rule policy. ठीक है, अब यहाँ पे protect का मतलब समझो. Government is saying that the British paramountcy will also protect. They will also protect what? The structure of these princely states. It means that in case of demand of independence by Indian people, what will happen? Okay, the British government will sign an agreement for British provinces only. We will not sign any agreement for princely states. Princely states will be allowed to maintain their independent status. गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में आज़ादी की मांग हो रही है और इन केस अगर पावर ट्रांसफर करना पड़ा तो प्रिंसली स्टेट से कहा घबराओ मत, पावर ट्रांसफर का एग्रीमेंट केवल और केवल किसके साथ होगा? ब्रिटिश प्रोविंसेस के साथ होगा, जिस एरिया को हम रूल करते हैं. ये जो हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हैं हु आर रूलिंग इन एन इंडिपेंडेंट मैनर, इनके बारे में हम कोई एग्रीमेंट साइन करने के हकदार नहीं है. इट मीन्स यू विल बी अलाउड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. एंड एज अ रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट आपकी इच्छा क्या होगी? डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना या इंडिपेंडेंट रहना? इंडिपेंडेंट रहना. तो ये एक ऐसी दवा थी जिसकी घूंटी पिलाई गई प्रिंसली स्टेट्स को, और प्रिंसली स्टेट्स क्या करेंगे? प्रो ब्रिटिश पॉलिसीज को फॉलो करने लगेंगे. गॉट इट? तो बटलर कमिटी का इंपॉर्टेंस ये. So have you written this point that the government also promised that they will protect the structure of these princely states, right? Explain this point. This is very important. Write this, that the princely, write this, in case of transfer of power, in case of transfer of power, okay, in case of transfer of power, right? Okay, the British government had no any authority to sign an agreement. The British government had no any authority to sign an agreement in the context of princely states, in the context of princely states in future, in the context of princely states in future. It means in the context of princely states in future, it means the princely states are free to decide about, are free to take decisions about their political future. The princely states are free to take decisions about their political future. They are free to take decisions about their political future. और ये क्या है? This is a kind of appeasement. This is a kind of appeasement. ये appeasement. This is a kind of appeasement. Right? Butler committee is clear? Members clear? Purpose clear? Recommendations clear? Now, again, I am relating some things here. So this was the NCM. The time period was 1920 to 22. Clear? And there is another movement. The name of that movement is CDM, Civil Disobedience Movement. And the time period is 1930 to 32-34. This is the CDM. One is NCM 2022 and the second is CDM. इसके बीच में हमने क्या देखा? एक important event, that is what? Butler Committee. Butler Committee. That is very important. What is the year? 1927. But इसके बाद there is another important topic, that is Nehru Report. Nehru Report 1928.
यहाँ पे केवल वो रेफरेंस दूंगा नेहरू रिपोर्ट का दैट इज रिलेटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है ना, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट ने जो डिमांड करी थी, नेहरू रिपोर्ट डिमांडेड फॉर अ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, नेहरू रिपोर्ट डिमांडेड फॉर अ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, ठीक है। इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात करी नेहरू रिपोर्ट ने, ओके ओके, डोमिनियन स्टेटस। नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि देयर विल बी अ सेंटर एंड द प्रोविंसेस विल बी पार्ट ऑफ दिस फेडरल यूनिट, एक फेडरल स्ट्रक्चर जैसी चीज होगी, सेंटर होगा, एंड हियर द प्रोविंसेस और द ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस विल बी इट्स यूनिट। तो उन्होंने कहा इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक सेंटर होगा और क्या होंगे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कुछ कहा ही नहीं, ठीक है। It means this was not a very clear provision. What we see here that it is talking about you can say that structure in which there will be British Indian provinces, but okay, center will be powerful here, center will be powerful here, and the residuary powers will be with the center। residuary powers किसके पास होंगे, सेंटर के पास होंगे, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जैसी चीज नहीं होगी, ठीक है। देयर विल बी जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम, जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम होगा, बट इसमें प्रिंसली स्टेट से जुड़ा हुआ क्या मामला है, रिगार्डिंग प्रिंसली स्टेट्स नेहरू रिपोर्ट वाज म्यूट और साइलेंट। प्रिंसली स्टेट के बारे में कुछ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला, ध्यान से समझो इस बात को। अगर नेहरू रिपोर्ट ने क्लियरली ये बात कह दी होती कि प्रिंसली स्टेट्स विल बी द पार्ट ऑफ दिस यूनियन, तो क्या होता, प्रिंसली स्टेट भड़क जाते, नाराज हो जाते और अंग्रेजों के साथ जाके खड़े हो जाते, पहले ही खड़े थे वो। मेरी बात समझ गया ना, जैसे ही क्लियर उनको एक मैसेज मिल जाता कि भाई इंडिया में तो लग रहा है प्रिंसली स्टेट्स को जबरदस्ती शामिल कर लिया जाएगा, वो तुरंत किसके सपोर्ट में चले जाते, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी एक पॉलिसी फॉलो कर रही थी उनको अपीज करने की, ठीक है। अच्छा, अगर आप क्लियरली कह देते कि नहीं, प्रिंसली स्टेट्स विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनियन, तो इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम हो जाती। हमेशा लोग किस चीज का रेफरेंस देते, नेहरू रिपोर्ट का। जैसे नेहरू रिपोर्ट ने एक बात कही थी, नेहरू रिपोर्ट ने कहा था कि प्रोविंसेस विल बी कार्व आउट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। तो नेहरू रिपोर्ट ने बात कर दी थी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस 1928 में, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक स्टेट। उसका वैलिड बेस क्या था, लोगों के डिमांड का आधार क्या था, लोगों ने कहा कि 1928 में आपने प्रॉमिस किया था, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू और उनकी कमेटी के मेंबर्स ने क्या किया, प्रिंसली स्टेट्स के मुद्दे पे कुछ बोला ही नहीं, दे रिमेन साइलेंट। ओके, नेहरू रिपोर्ट वाज म्यूट ऑन द इशू ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि प्रिंसली स्टेट्स के बारे में नेहरू रिपोर्ट में ये लिखा गया वो लिखा गया, तो याद रखना कुछ नहीं बताया गया, नेहरू रिपोर्ट वाज म्यूट। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है इन द स्टेटमेंट, so you can write here an important note, write this, Nehru report was mute or silent, Nehru report was mute or silent on the question of princely states in India. Nehru report was completely mute or silent on the question of princely states in India. Nehru report was completely mute or silent on the question of princely states in India. Okay. अच्छा, जब आप चुप रह जाते हो, कोई कुछ पूछ रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हो, मुस्कुरा के चले जा रहे हो, 3-4 बार ये काम किया, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे बुद्ध ने लोगों को कंफ्यूज किया था, ठीक है। गॉड के बारे में पूछो, गॉड रहता कहाँ है, बुद्धा विल स्माइल ओनली, ही नेवर आंसर्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पीपल वर कंफ्यूज्ड। अब कंफ्यूज कौन होगा, प्रिंसली स्टेट्स। नेहरू रिपोर्ट वाज साइलेंट ऑन दिस। और नेहरू रिपोर्ट क्या था, इट वाज लाइक यू कैन से दैट फ्यूचर ड्राफ्ट फॉर द फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। इसलिए नेहरू रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस है। नेहरू रिपोर्ट वाज लाइक अ ड्राफ्ट फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट वाज लाइक अ ड्राफ्ट फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। It was like a draft for the future constitution. Now princely states were very much worried
because Nehru report was not clear about their future status. Princely states were very much worried. Princely states were very much worried about their political future because Nehru report did not make the things clear. They were very much worried. वो बहुत worried थे. यहाँ तक की चीजें क्लियर है? They are very much worried. नेहरू रिपोर्ट कुछ बोल नहीं रहा है तो कौन बोलेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट विल से समथिंग. ओके नाउ अब देखो नेशनल मूवमेंट के कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो मैं स्किप करूंगा यहाँ. ठीक है, उसको अलग वीडियो में करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो देखो दूसरा मूवमेंट क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस मूवमेंट? 1930 to 32-34. देखो क्या है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान क्या होता है कि एक साइमन कमीशन बना था. एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको. ओके, दैट विल बी हेल्पफुल. दैट साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1927 और साइमन कमीशन को ड्राफ्ट करना था क्या? फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड इन साइमन कमीशन ऑल द मेंबर्स वेर ब्रिटिश. सारे मेंबर उसके क्या थे? अंग्रेज थे. इससे इंडियन लीडर्स का ईगो हर्ट हो गया, आईएनसी का ईगो हर्ट हो गया. उन्होंने कहा यार इंडियंस को इस लायक भी नहीं समझते तुम कि साइमन कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं रखा. देन आईएनसी डिड व्हाट? स्टार्टेड एंटी साइमन एजुटेशन. ओके, एंटी साइमन एजुटेशन, साइमन बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ. फिर क्या हुआ? आईएनसी ने एक अपना ड्राफ्ट तैयार किया. ठीक है, क्योंकि लगता था ब्रिटिश को कि इंडियंस इस लायक नहीं है कि अपना फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन से बना सके. तो नेहरू कमेटी रिपोर्ट क्या है? दिस इज a model, a draft model that Indians are capable of making the future constitution for themselves. Draft of the future constitution. तो नेहरू रिपोर्ट बना. नेहरू रिपोर्ट will be accepted or rejected by the British. It will be rejected by the British. ठीक है, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मुस्लिम लीग क्यों पीछे रहेगी. ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा मैं भी बहुत टैलेंटेड हूं. देन व्हाट विल हैपन? Muslim League and Jinnah will also come with his own model that is known as Jinnah's 14-point formula. जिन्ना भी लेके आ गया अपना 14-point formula. ये भी रिजेक्ट हो गया, नेहरू रिपोर्ट भी रिजेक्ट हो गया. एंड फाइनली दिस साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930. साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1930 में. एंड डिस्कशंस ऑन दिस रिपोर्ट विल बी हेल्ड इन लंदन. साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कशन कहां होने वाला था? लंदन में. एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड दैट इन दिस डिस्कशन ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इनवाइटेड. यू ऑल आर इनवाइटेड, आप सबको बुलाया जा रहा है. एंड हियर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी ट्रीटेड एज इक्वल. सब एकदम इक्वल फुटिंग पे बात करेंगे. ठीक है, कोई बॉस नहीं, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं. all the discussions will be done on an equal footing. ठीक है, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ऑल स्टेक होल्डर्स विल बी ट्रीटेड एज इक्वल. तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंदन. और कितने कॉन्फ्रेंस हुए? 3 कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड बिटवीन 1930 to 1932. टोटल कितने कॉन्फ्रेंस हुए? 3 हुए. RTC 1, RTC 2 and RTC 3. 3 conferences were held. ठीक है, INC, which was the most important political party in India, did not participate in RTC 1. INC also did, INC participated in RTC 2, but INC did not participate in RTC 3. Congress participate नहीं करी. Why it did not participate in first and third? देखो, movement and negotiations cannot go hand in hand. In India at this time, which movement was launched? Civil disobedience movement was. तो movement और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकता. तो गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ, that is called गांधी इरविन पैक्ट, on 5th March 1931. ठीक है, और गांधी ने कहा कि INC will participate in round table conference. INC will temporarily suspend its civil disobedience movement and will participate in RTC. क्या हुआ? सेकेंड RTC में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था. ये एक रेफरेंस है, आप समझ जाओ. इस रेफरेंस में यहाँ पे क्या डिस्कस होने वाला है इस कॉन्फ्रेंस में? द फ्यूचर पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया.
यहाँ पे जो सारे डिस्कशंस हुए, द आउटकम ऑफ ऑल दीज डिस्कशंस केम इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन का आउटकम ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ऑलवेज रिमेंबर, साइमन कमीशन सबमिटेड इस रिपोर्ट इन 1930 and the discussions on this report will be held in London in the form of 3 RTCs, RTC 1, 2 and 3, right? And the outcome of all these decisions are what? Government of India Act 1935। अब थोड़ा सा चीजों को रिलेट करो। 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने कुछ कहा नहीं, नहीं कहा। इसके बाद साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट तैयार कर रहा है, साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट किया, रिपोर्ट पे डिस्कशन कहाँ होने वाला है? लंदन में। ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज विल बी इनवाइटेड। नाउ टेल मी, ब्रिटिश गवर्नमेंट विल इनवाइट प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? यस, दे विल इनवाइट प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल्सो। आओ अब बातचीत होगी। नाउ व्हाट विल हैपन? राइट दिस, आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट, सेकेंड and third, 3 were held, and here we are discussing what? RTCs and princely states. RTCs and princely states. The context is clear now. Now what will happen? Write this. Princely states and their representatives. Princely states and their representatives participated in all the 3 RTCs, round table conference. Princely states and their representatives participated in all the 3 round table conference. ठीक है, got it? जैसे princely states and their representatives participated in all these, okay, states. For example, princely states में which state participated? I am writing some names, right? Alwar state ruler, Baroda state ruler, Darbhanga state ruler, Bhopal state ruler, Jammu Kashmir state ruler, Patiala state ruler, etc. All these princely states ruler will participate, right? Alwar, Baroda, Darbhanga, Bhopal, Jammu Kashmir, Patiala, okay? And they will also send their delegates. 74 delegates of these princely states will reach where? Okay, to round table conference. For example, one member KC Niyogi, polity में आप इनके बारे में पढ़ोगे, VT Krishnamachari, VT Krishnamachari, they were the delegates of princely states. Princely states के delegations ने जिनको भेजा था, उनमें एक important नाम KC Niyogi का भी है, ठीक है? This is an important name. Now, अब आप बताओ कि if you all are the rulers of princely states, you all have participated in round table conference, there is already British government and their representatives, what will you demand? 1930 से 32 के बीच में क्या डिमांड करोगे? आपकी डिमांड यही होगी कि भाई हमारी इंडिपेंडेंस बनी रहनी चाहिए, आवर इंडिपेंडेंस मस्ट बी रिटेन्ड। और आपकी इंडिपेंडेंस के सामने खतरा क्या बन रहा है? इंडियन नेशनल मूवमेंट। एनसीएम हो चुका है, सीडीएम चल रहा है, आपको लग रहा है यार आजादी मिली तो हमारी आजादी गई, बस यही प्रॉब्लम है। आपकी इंडिपेंडेंस के सामने खतरा क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट। दिस इज द प्रॉब्लम। सो दे विल डिमांड दैट आवर राइट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। दे विल अगेन डिमांड, they will try to get assurance from the British government, their rights must be protected and preserved। यही वो डिमांड कर रहा है, that their rights must be protected and preserved, okay? They are trying to get this assurance from the British government that their rights must be protected and preserved। के rights protect होने चाहिए, preserve होने चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है आपको? रिलेट कर पा रहे हो कि एक पैरेलल स्ट्रीम क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक पैरेलल स्ट्रीम क्या है? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स की डिमांड क्या है? उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। उनकी इंडिपेंडेंस कैसे बनी रहेगी? अगर इंडियाज इंडिपेंडेंस है ना, अगर ये सक्सेसफुल होता है, देयर राइट्स विल कम इन थ्रेट, उनके अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। नाउ ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर, ओके, व्हाट इज द, ओके, आफ्टर दिस व्हिच एक्ट विल कम? Act of 1935 will come. Act of 1935 will come.
Okay, and what is in the Act of 1935? Right, look here. What we see here in this Act of 1935, there are some important points. Basically, they will be helpful in understanding the princely states concept here. And what has been written here, that Government of India Act 1935 proposed for an all India federation. किस चीज की बात की थी? ऑल इंडिया फेडरेशन की. It proposed for an all India federation. All India federation. And now, okay, there will be federal structures. Federal structures का मतलब क्या होगा? एक सेंटर होगा, इसके यूनिट्स होंगे, सेंटर के पास, यूनियन के पास अपना पावर होगा, स्टेट्स और प्रोविंसेस के पास भी राइट्स होंगे. ठीक है, ये होता है. जैसे राइट्स विल बी क्लियरली डिफाइंड हियर. नाउ फेडरल स्ट्रक्चर विल कंप्राइज ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स और द नेटिव स्टेट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या कहा, ध्यान से समझना, ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह रही है कि इसके अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस भी रह सकते हैं और इंडियन स्टेट्स या नेटिव स्टेट्स भी इस फेडरेशन का हिस्सा होंगे. अच्छा, इससे नेटिव स्टेट्स को डर लग जाएगा कि नहीं? या लपेट दिया इसने, खींच लिया फेडरेशन में. नाउ व्हाट विल हैपन, देखो, फेडरल सेंटर with provincial legislature. For Indian states, accession to this federation was, यहाँ पे क्या है? इसका मतलब एक तरफ गवर्नमेंट क्या कह रही है, इस फेडरेशन में कौन होगा? ब्रिटिश प्रोविंस प्लस इंडियन स्टेट्स. कांग्रेस खुश हो जाएगी, मजा आ गया. दूसरा प्रोविजन क्या है? दैट देयर एक्सेशन टू दिस फेडरेशन इज व्हाट? वॉलेंटरी. अगर वो चाहे तो ज्वाइन करे और चाहे तो ज्वाइन ना करे. यही मनवाने के लिए तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सब पहुंचे थे कि भैया ये फ्रीडम दे दो, हम चाहे तो ज्वाइन करें, चाहे तो ज्वाइन ना करें. मेरी बात समझ गया? अच्छा, ये क्या है, डिवाइड एंड रूल है कि नहीं, बताओ. व्हाट विल बी द अल्टीमेट डिजायर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? विल दे लाइक टू ज्वाइन? नो, दे विल नॉट लाइक टू ज्वाइन. और गवर्नमेंट बहुत होशियार है. इफ दे विल नॉट लाइक टू ज्वाइन, सो द नंबर इज ओके इन हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर स्टेट्स. अगर कल के डेट में इंडिया को पावर ट्रांसफर भी कर देते हैं तो इंडियन टेरिटरी में उनकी इंटरफेरेंस हमेशा बनी रहेगी. मेरी बात समझ गया ना? ये प्रिंसली स्टेट्स क्या कर सकते थे, हमेशा अपने हेल्प और सपोर्ट के लिए किसकी तरफ देखते? ब्रिटिश की तरफ देखते. बट प्रॉब्लम क्या है, दैट दिस प्रोपोज्ड फेडरेशन नेवर केम अप, ये कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैरिड ऑन अप टू 1946 as per the provisions of Government of India Act 1919. इसका मतलब 1919 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही 1946 तक चीजें चलती रहेंगी. और यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्रोपोजल. यहाँ क्या अप्लाई हो जाएगा? कैबिनेट मिशन प्रोपोजल. बट बाय रीडिंग दिस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है? डिवाइड एंड रूल, टू डिले द, फॉर एग्जांपल वी आर डिमांडिंग फॉर फ्रीडम, ब्रिटिश गवर्नमेंट विल से ऐसे कैसे आजादी दे दे यार, किसको देना है पहले ये तो बताओ. आजादी देना है किसको देना है? कांग्रेस को दे कि मुस्लिम लीग को आजादी दे दे कि प्रिंसली स्टेट्स को आजादी दे? पहले आपस में तय करके आओ कि आजादी चाहिए किसको. नारा क्या लग रहा था कि हमें चाहिए आजादी. अंग्रेजों ने कहा बैठो और बताओ किसको चाहिए आजादी, पहले क्लियर कर दो, तब हम आजादी दे देंगे. और हम बड़े सिविलाइज लोग हैं, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे. ना हम प्रिंसली स्टेट्स के साथ इनजस्टिस होने देंगे, ना हम माइनॉरिटीज के साथ इनजस्टिस होने देंगे. ऐसा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट कर क्या रही थी? दे वेयर डिलेइंग. वो डिले कर रहे थे कि हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करने में डिले करना. और डिले करने का उनके पास बहाना भी था, प्रिटेक्स्ट भी था. और वो बहाना क्या था? मुस्लिम लीग. वो बहाना क्या था? डिमांड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. गॉट इट? नाउ यू हैव गॉट दिस इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश. नाउ okay, let's look at the second important development. These are the points from the constitutional development in India. दूसरा क्या है? क्रिप्स मिशन 1942. क्रिप्स मिशन 1942
1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आता है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रिलिम्स. ओके, it came to India in March 1942, and the purpose of this CRIPS mission was get the full Indian cooperation and support in First World War. देखो, sorry, Second World War. Second World War was in progress during this time period, 1939 to 1945. Second World War चल रहा था, और 1945 के आसपास, सॉरी 1942 के आसपास, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश पोजीशन वाज वीकर. ठीक है. नाउ इन दिस सिचुएशन ब्रिटिश को क्या चाहिए था? इंडियंस की हेल्प और सपोर्ट चाहिए थी. तो वो कौन सा मिशन लेके आए? क्रिप्स मिशन प्रपोजल्स लेके आए कि इंडियंस को कन्विंस किया जा सके, ठीक है, कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करें, सपोर्ट करें. विथ व्हाट? मेन. मेन मीन्स व्हाट? इंडियन पीपल. इंडियन यंग इंडियन पीपल विल बिकम ट्रूप्स. दे विल फाइट फॉर ब्रिटेन. Okay, we will do what? We will collect funds for British to fight the wars. And there were iron and steel industry in India also. Tata Iron and Steel 1907, वो सब भी था. तो हम मटेरियल से, आयरन एंड स्टील से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प कर सके. इट मीन्स दे वांट फुल इंडियन सपोर्ट एंड कोऑपरेशन. इसलिए उन्होंने हमारे पास ये ऑफर दिया. और ऑफर में क्या कहा? दैट देखो मेंबर्स में क्या है, राइट? Winston Churchill was the prime minister at that time. This is an important prelims question. That when Cripps mission was sent to India, who was the prime minister? So the answer is Winston Churchill, right? He was the prime minister. Now, 1942 it was sent, and now the next important point is, okay, what are the proposals of this Cripps mission? ठीक है, proposals क्या है Cripps mission के? तो देखो, the British government would accept the new constitution subject to the, पहली चीज इसमें बात इसने करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. क्रिप्स मिशन इज टॉकिंग अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये इसका सबसे प्रोग्रेसिव प्रोविजन है. ओके, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट विल फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, विल बी इंडियंस. ठीक है, ऑल मेंबर्स विल बी इंडियंस. ये भी बहुत अच्छी बात है कि मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी इंडियन. दूसरी बात क्या कह रहा है कि इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाट विल हैपन? Okay, the members will be what? From British provinces also and Indian princely states also. मतलब all Indians की बात कर रहा है कि the members will be the all Indians. Okay, this is the Cripps mission. इतना याद रखना, अभी डिटेल प्रोविजंस में हम नहीं जा रहे हैं. Okay, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात थी कि all members will be Indians and the members will come from British provinces also and princely states also. क्या कहा क्रिप्स मिशन ने? कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो मेंबर्स आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दे विल बी इलेक्टेड, और प्रिंसली स्टेट्स से जो मेंबर्स आएंगे दे विल बी नॉमिनेटेड. यानी कि राजा महाराजा नॉमिनेट करके भेज देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ये कहा क्रिप्स मिशन ने. दिस इज नॉट गुड, दिस प्रोविजन इज नॉट गुड. नॉमिनेशन, अगर प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करके अपने मेंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेगा तो उसका पावर और डोमिनेंस तो हमेशा बना रहेगा. मेरी बात समझ गया ना? This is the point. Now, this is the demerit also, that representation of princely states by nominees and not by elected representatives is the major weakness. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और सबसे जो इस क्रिप्स मिशन का सबसे जो कह सकते हो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है, सो दैट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजन इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव प्रोविजन. नाउ आफ्टर क्रिप्स मिशन व्हाट विल कम? देखो, एक डेवलपमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलपमेंट इन इंडिया जो स्टार्ट होता है 1939 से with Linlithgow's proposals, with August offer. Okay, then we will see Cripps mission 1942, then we will see Wavell plan, and on the basis of this Wavell plan, Simla conference in the year 1945, then there is cabinet mission plan in the year 1946, then there is Mountbatten plan in the year 1947, and then there is Indian Independence Act in the year 1947. So here we are taking selective references. एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया, इन विच विल डिस्कस फ्रॉम 1773 और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, वहां तक के टॉपिक को कवर करेंगे. बट यहाँ केवल मैं रेफरेंसेस ले रहा हूँ, तो घबराना नहीं है.
So here we are discussing what? Now we are going to discuss cabinet mission plan. Important points here. तो कैबिनेट मिशन प्लान में क्या कहा जा रहा है? देखो, द कैबिनेट मिशन प्लान वाज अ स्टेटमेंट मेड बाय द कैबिनेट मिशन एंड द वायसराय लॉर्ड वेवल. हमेशा याद रखना, हु वाज द वायसराय 1946? तो द आंसर इज लॉर्ड वेवल. ठीक है. दिस कैबिनेट मिशन प्लान 1946, this year is important. It contained proposals regarding the constitutional future of India. It means that this cabinet mission plan is presenting proposals regarding the future constitution of India, right? And the members of the cabinet mission, this fact is also important for your exam. Members of the cabinet mission, who are the members? So the first important name is Lord Patrick Lawrence. दूसरा इंपॉर्टेंट नाम क्या है? स्टैफर्ड क्रिप्स. पहले भी स्टैफर्ड क्रिप्स आ चुका है, बट यहाँ कैबिनेट मिशन के मेंबर के रूप में आ रहा है. थर्ड इंपॉर्टेंट नेम इज A.V. Alexander. So these are three members. Okay, Lord Patrick Lawrence, Stafford Cripps, and A.V. Alexander. And why this mission is called cabinet mission? Because these three members were the members of British Parliament. ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी कैबिनेट के मेंबर्स थे. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस मिशन कैबिनेट मिशन. मेरी बात समझ गए? यहां लिखा भी हुआ है कि पैट्रिक लॉरेंस क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था. स्टैफर्ड क्रिप्स वाज प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये भी ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था. एवी अलेक्जेंडर वाज द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी. इट मींस ऑल दीज थ्री वेयर द ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स. ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स. दैट्स वाई दिस मिशन इज कॉल्ड कैबिनेट मिशन. और ये क्या था? एक सीरियस प्रोपोजल था जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में डेडलॉक बना हुआ था. डेडलॉक को सॉल्व करने का दिस प्रोपोजल वाज अ सीरियस प्रोपोजल टू सॉल्व द डेडलॉक दैट वाज मेंटेन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज. कैबिनेट मिशन प्लान कहता क्या है? व्हाट आर द प्रोपोजल्स हियर? द प्रोपोजल इज देयर शुड बी अ यूनियन ऑफ इंडिया. ध्यान से देखो, ये किस चीज की बात कर रहा है? यूनियन ऑफ इंडिया. और यूनियन ऑफ इंडिया विल हैव व्हाट? बोथ. बोथ मींस, यहां पे ध्यान रखना एक एक पॉइंट्स को. इट विल हैव बोथ. बोथ मींस व्हाट? ब्रिटिश इंडिया. इट मींस ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड स्टेट्स. ए स्टेट मींस व्हाट? नेटिव स्टेट. प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइन. इस यूनियन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर में कौन होगा? देयर विल बी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस आल्सो एंड नेटिव स्टेट्स आल्सो. और वो क्या कह रहा है? which should deal with the following subjects: foreign affairs, defense and communication. इसका मतलब ये जो यूनियन है, it will deal with important subjects like foreign affairs, defense and communication. ये राइट्स किसके पास होंगे? यूनियन के पास. और भी बहुत सारे राइट्स किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? यूनिट्स को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द यूनिट्स विल बी गिवन द राइट्स. यूनिट्स को भी राइट्स दिए जाएंगे. ठीक है. नाउ चलिए, now the next important point is that the union shall have an executive and legislature constituted from British India and state representatives. फिर से दोनों आ गया, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होगा, इसमें भी ब्रिटिश प्रोविंसेस और जो नेटिव स्टेट्स हैं, यहाँ से दोनों जगह से मेंबर्स आएंगे. ठीक है. तो ये दो पॉइंट है कि दोनों को इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहा है. साथ ही साथ वो क्या कह रहा है कि ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट्स एंड ऑल रेसिडरी पावर शुड वेस्ट इन द प्रोविंसेस. कैबिनेट मिशन इज सेइंग दैट जो रेसिडरी पावर होगा दैट विल बी गिवन टू प्रोविंसेस. और जब भी रेसिडरी पावर आप प्रोविंसेस को देते हो, इट मीन्स यू आर सपोर्टिंग अ पावरफुल प्रोविंस. अभी रेसिडरी पावर किसके पास है? सेंटर के पास है. मेरी बात समझ गया ना? तो इसका मतलब क्या है कि कैबिनेट मिशन प्रोपोजल्स में कुछ अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है. बुरी चीजें क्या है? पहला ही हो गया कि रेसिडरी पावर किसको दिया जाएगा? प्रोविंसेस को. तो अगर प्रोविंसेस ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो बताओ, जो हमारा यूनियन है, क्या ये स्टेबल बना रह पाएगा? सही मायने में यूनियन रह पाएगा? नहीं. ठीक है, इसके डिसॉल्व होने का खतरा बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये पॉइंट है. अब देखो इसमें और एक पॉइंट क्या है? प्रोविंसेस शुड बी फ्री टू फॉर्म ग्रुप्स विद एग्जीक्यूटिव. एक ग्रुपिंग वाला स्टेट का प्रोविजन है, और इसमें भी एक पॉइंट है. अब मैं इसको अपने तरीके से बताता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा. ठीक है. नाउ देखो, जो कैबिनेट मिशन प्रोपोजल्स हैं 1942 के,
सॉरी 46 के कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स 1946, इट्स प्रोविजंस कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग द डिमांड फॉर पाकिस्तान. सो कैबिनेट मिशन डिड व्हाट? इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान. इसने पाकिस्तान की डिमांड क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी. पाकिस्तान की डिमांड रिजेक्ट कर दी. कहा कि वाई पाकिस्तान? इफ यू वांट पाकिस्तान on the basis of your minority status claim, so when separate nation Pakistan will be given, तो पाकिस्तान के अंदर भी तो minorities होंगे, and those minorities will be Hindus and the other religious groups. So in order to solve one minority problem, if we are creating challenges for the other minorities, this is not a solution at all. ये तो solution है ही नहीं. And you are demanding Pakistan, एक है इधर राइट में ईस्टर्न पाकिस्तान जो आगे चल के बांग्लादेश हो गया, और दूसरा कहाँ है? वेस्ट में. ठीक है. कहा हाउ यू कैन मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ दिस नेशन इन फ्यूचर? योर इंटीग्रिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. कैबिनेट मिशन ने कहा टूट जाएगा भाई, दो हिस्से में टूट गया 1971 में. यूनिफिकेशन ऑफ इटली जब आप पढ़ रहे थे तो पेपल स्टेट्स को एनेक्स करना क्यों जरूरी था? नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स, इनकी यूनिटी बनी नहीं सकती थी विदाउट एनेक्सिंग द पेपल स्टेट्स. वही कहानी यहाँ थी कि the demand for Pakistan was a separate nation which was divided into two halves, 740 miles apart from each other. Okay, and for everything your dependency will be maintained on India. How you will be able to maintain your independent status? Your integrity may be compromised in the future. So the cabinet mission said that this is not a feasible demand. And on minority basis, if you are demanding, this is also not feasible because it will create challenges for the other minorities. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम क्या था? एक हाथ दो, दूसरे हाथ ले लो. मेरी बात समझो, बहुत होशियार थे. खुश हो गए हम लोग सुन के कि मजा आ गया, कितना अच्छा है कैबिनेट मिशन. कैबिनेट मिशन ने कहा कि नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा. देन व्हाट कैबिनेट मिशन विल डू? प्रोविजन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स, ये भी लेके आ जाएगा. प्रोविजन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स. और ये प्रोविजन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स क्या है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे स्टेट्स की कैटेगरी बना दी जाएगी. गॉट इट? जैसे इफ यू लुक एट दिस स्लाइड यू कैन जस्ट गेट सम आइडिया. प्रोविजन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स. ओके, आर यू लुकिंग एट दिस स्लाइड? ये डाटा नहीं याद करना है, कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है. दिस इज वन ग्रुप A, this is another group B, this is another group C. There are three groups. अब देखो टेक्निकल बात क्या है, डाटा नहीं रटना आपको. How many provinces are there? Provinces means we are talking about British Indian provinces. ये princely states नहीं है. These states are ruled and controlled by British. हम कब की बात कर रहे हैं? 1946 की बात कर रहे हैं. एक स्टेट कौन सा है? मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, बंगाल. देवर थ्री प्रेसिडेंसीज, आपको पहले से ही पता था. इन पे तो ब्रिटिश रूल कर ही रहे थे. और क्या हो गया? यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज आप यूपी कहते हो. बिहार वाज वन रीजन, सेंट्रल प्रोविंस था जिसको आप एमपी कहते हो. उड़ीसा वाज वन प्रोविंस, पंजाब वाज वन प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड NWFP. सिंध वाज इन नॉर्थ वेस्ट, दिस इज बंगाल एंड दिस इज असम. अब आप ध्यान से देखो, इन दिस ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स, इफ यू लुक एट दिस ग्रुप बी, ग्रुप बी पे ध्यान से देखो. ये ग्रुप बी के जो स्टेट्स हैं किधर है? उधर ही है जिधर पाकिस्तान मिला था, नॉर्थ वेस्ट. वही हिस्सा तो पाकिस्तान बना. सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध. अच्छा, ग्रुप सी में आप आ जाओ, देखो कौन कौन से स्टेट्स हैं. बंगाल, असम, इधर की टेरिटरीज मिला के क्या बनाई गई थी? ईस्टर्न पाकिस्तान. तो कैबिनेट मिशन कितना होशियार है. On one side cabinet mission is saying no Pakistan, and on the other side cabinet mission is grouping the states in such a manner that when you will combine these two groups, group B plus group C, this is what? This is blueprint of Pakistan. यही तो है पाकिस्तान का blueprint. तो अंग्रेज बड़े होशियार थे, इधर से मना किया, उधर से प्रोविजन को इंक्लूड कर दिया. राइट? तो दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली द ब्लूप्रिंट ऑफ पाकिस्तान. यही तो है पाकिस्तान का ब्लूप्रिंट. मेरी बात समझ गया? और ये क्या है?
मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यही तो है इंडिया। हालांकि इसका कुछ हिस्सा इधर भी है, इंडिया में भी है, बट ग्रुप ए विल सी इंडिया एंड ग्रुप बी प्लस सी इट इज व्हाट, पाकिस्तान। दिस इज ब्लूप्रिंट ऑफ पाकिस्तान। ये हो गया ब्लूप्रिंट ऑफ पाकिस्तान। तो ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स किया, आईएनसी सेड दैट, ये क्या किया भाई तुमने, on one side you are rejecting the demand for Pakistan and the other side you are doing what, to B plus group is equal to what, Pakistan. Now ये हो गया ना अपीजमेंट। इसके बाद आ जाओ प्रिंसली स्टेट्स पे आ जाओ। व्हाट कैबिनेट मिशन इज सेइंग, कैबिनेट मिशन इज सेइंग दैट ओके अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड and this constituent assembly will draft the constitution of India। और कैबिनेट मिशन प्रोपोजल्स के बेसिस पे ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होगा, द मेंबर्स विल बी directly elected or indirectly elected, so the answer is indirectly elected। indirect election से members आएंगे। कैसे indirect election से आएंगे, तो देखो these are the British provinces ना, यही तो है ब्रिटिश प्रोविंस। इन सभी प्रोविंसेस में क्या होगी, पीएलए होगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इन ऑल दीज प्रोविंसेस देयर विल बी पीएलए। जैसे आज स्टेट्स में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर्स, in the same way in all these provinces there will be PLAs, provincial legislative assembly। so this PLA is what, an elected body। ये PLA क्या है, this PLA is an elected body and this PLA will elect the members of the constituent assembly from their province। मेरी बात समझ गया ना, ये पीएलए क्या करेगी, अपने प्रोविंस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजेगी। इट मींस द पीपल आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन दिस इलेक्शन। हु इज पार्टिसिपेटिंग, पीएलए is electing the members of constituent assembly। so the members of provincial legislative assembly are electing the members of constituent assembly। so this kind of election where the people did not participate directly is what, a kind of indirect election। यही तो है indirect election। दूसरा क्या होगा, किस स्टेट से, किस ब्रिटिश प्रोविंस से कितने मेंबर्स आएंगे, ये दूसरा प्रॉब्लम था। हाउ इट विल बी डिसाइडेड, बिकॉज द पॉपुलेशन एंड द साइज ऑफ स्टेट्स डिफर, इट्स नॉट यूनिफॉर्म। so population was one criteria, population was one criteria। एक क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। इट मीन्स 10 lakh population roughly will send one member। 10 lakh population पे कितने member आएंगे, one member। for example, just take an example that suppose the population of Odisha is 60 lakhs। so how many member, 6 member, मतलब roughly, ठीक है, 62 होगा तो भी 6 member। and what about different religions, okay, so different religious classes which forms the part of the population, so they will be accommodated in this number। तो accommodate कर लिया जाएगा। मेरी बात समझ गया, this was the idea। but cabinet mission is saying that in this constituent assembly members of princely state will also come। princely state के भी members constituent assembly join कर सकते हैं, okay, princely states। so how princely state will send its members or representatives, so nomination, clear। so either they will be indirectly elected, they will be indirectly elected in case of, okay, British provinces, and they will be nominated in case of the princely states। इसका मतलब उनको ऑप्शन दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बन सकते हो, बट ये चीज उनके ऊपर फोर्सफुल नहीं है, ओके, दिस इज नॉट मेड कंपल्सरी फॉर देम। मेरी बात समझ गया ना, ये कंपल्सरी नहीं किया गया और ये चीज सही नहीं है। इट वॉज नॉट अप्लाइड कंपल्सरीली, ये कंपल्सरीली नहीं अप्लाई किया गया। एंड इट शोज दैट स्टिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट्स दैट व्हेन इंडिया विल गेट फ्रीडम, ओके, so there will be one India which will be comprised of the British provinces, plus what we will do, we will make India weaker for the coming future। ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स है तो हमेशा यहाँ पे रिलीजियस इश्यूज बने रहेंगे, एंड द प्रिंसली स्टेट्स इफ दे विल नॉट ऑप्ट, so in future for their help and support they will look towards British government, and in this way British government will be able to exercise its control even after giving freedom to India।
कोई भी देश जो आप पे शासन कर रहा है, वो आपको आजाद करने के बाद आपको पावरफुल नेशन के रूप में नहीं देखना चाहेगा। मेरी बात समझ गया ना? अगर आप पावरफुल हो जाओगे तो आपको उसकी हेल्प एंड सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल ट्राई टू मेक यू वीकर। दैट इज द ब्रिटिश पॉलिसी इन 1947। बट थिंग्स changed. What happened next? Next is Mountbatten Plan on 3rd June 1947. Mountbatten Plan. And this plan did what? Mountbatten Plan जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान, ओके, और जो फ्रीडम ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, दिस वाज इन अकॉर्डेंस विद दिस प्लान। वो इसी प्लान के अकॉर्डिंग था, माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग था। दिस वाज इन अकॉर्डेंस विद दिस प्लान, Mountbatten Plan. Got it? And what is this saying? That with the lapse of Paramountcy, the Indian states will be free to join any dominion they liked, India और पाकिस्तान। देखो, माउंटबेटन प्लान के बारे में हमेशा याद रखना, इंडिया का इंडिपेंडेंस का प्लान था ये, इंडिया के पार्टीशन का भी प्लान था, प्लस प्रिंसली स्टेट्स के बारे में क्या कह रहा है माउंटबेटन प्लान, ये ध्यान से समझो। माउंटबेटन वॉज अ लिटिल बिट इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया। माउंटबेटन थोड़ा सा सिंपैथी था उसका, किसके लिए? इंडिया के लिए। हमेशा याद रखना, माउंटबेटन वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया, ही वाज हैविंग अ लिटिल बिट सिंपैथी फॉर इंडिया, कि इंडिया के लिए सिंपैथी थी। एंड इन दिस केस व्हाट इज द प्रोविजन? अगेन रीड दिस प्रोविजन, व्हाट इट इज राइटिंग। विद द लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी द इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स विल बी फ्री टू ज्वाइन एनी डोमिनियन दे लाइक्ड, इंडिया और पाकिस्तान। इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स जिस डोमिनियन को ज्वाइन करना चाहे, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इट हैज नॉट बीन रिटन दैट दे आर अलाउड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये नहीं लिखा माउंटबेटन ने, अगर लिख दिया होता तो, मेरी बात समझ गया ना? इट इज नो वेयर मैंशन, तो राइट दिस पॉइंट दैट ओके, इट वॉज नो वेयर मैंशनड दैट, it was nowhere mentioned that, कहीं पे भी ये mention नहीं था, it was nowhere mentioned that Indian states will be allowed to remain independent. It was nowhere mentioned that Indian states will be allowed to remain independent. ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा था। अब प्रिंसली स्टेट्स फंस गए, उनके पास दो ही ऑप्शन था, या तो इंडिया या तो पाकिस्तान। फिर माउंटबेटन ने चाय पे चर्चा की उनके साथ, प्रिंसली स्टेट से मिला, उनको समझाया, कन्विंस किया कि ज्यादा बेटर होगा किसको ज्वाइन करो, ज्वाइन इंडिया। ठीक है, तो माउंटबेटन आल्सो ट्राइड टू कन्विंस प्रिंसली स्टेट सो दैट दे कुड ज्वाइन विच डोमिनियन, इंडिया। डराया भी उनको, प्रिंसली स्टेट्स को माउंटबेटन ने डराया भी। क्या समझाया माउंटबेटन ने? दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नॉट गिव यू डोमिनियन स्टेटस, British government is not going to give dominion status to princely states. We will not say a single word about princely states. Princely states से हाय तौबा, कुछ नहीं करने वाले हम। प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कुछ नहीं कहने वाले, प्रिंसली स्टेट्स को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं देने वाले। इसका मतलब इन फ्यूचर हम आपको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर भी नहीं बनाएंगे। ब्रिटिश क्राउन भारत को आजाद करेगा, फिर आपके साथ सारे संबंध खत्म कर लेगा। ब्रिटिश क्राउन विल कट ऑल द कनेक्शंस विथ यू। सोच लो फिर कल को मुसीबत में पड़ोगे तो क्या होगा। ज्यादा बेटर है किसको ज्वाइन करो, इंडिया को ज्वाइन करो। तो माउंटबेटन वाज अ लिटिल बिट सिंपैथेटिक। उसने कहा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो एक इकोनॉमिक एंटिटी है, if you will not join India, so what will happen? Your economic prosperity will be hampered. मेरी बात समझ गए? और 1947 का दौर क्या था? From 1946, during these years, 1946-47, a lot of communal rights were happening inside the country. तो फिर समझाया, कहा बताओ तुम्हारे यहाँ दंगे वंगे हो गए, ठीक है, आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो आर्मी कहाँ से लाओगे? और जवाहरलाल नेहरू ने खुल के कह दिया, Jawaharlal Nehru said that the Indian army, okay, the services of Indian army will not be given to the princely states. Princely states को Indian army की service भी नहीं दी जाएगी। Jawaharlal Nehru was clearly saying that India may, once India will gain independence, the divine rights of kings will not be validated. Divine right of kings नहीं मिलेगा। The power and privileges of the kings will not be validated. Okay, so now the princely states were very much insecure.
कि what to do in that condition. And Mountbatten plan is a little bit obscure here. It's not clear, it has not clearly mentioned that they are allowed to remain independent. ये कहीं नहीं लिखा हुआ है. And what was the official stand of Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या था? दैट इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया मीन्स व्हाट? वी वांट एन इंडिपेंडेंट इंडिया व्हिच विल कंप्राइज ऑफ ऑल British provinces plus princely states. It means those people who are living in these princely states, they must get individual rights. उनको भी responsible और responsive government का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए. And in many of these princely states, the people were participating in Indian national movement. There was a word that is called Praja Mandal Andolan. What is Praja Mandal Andolan? The population of these princely states were fighting for Indian independence. They were supporting Indian independence. That is the Praja Mandal Andolan. Got it? This all was happening. And the princely states में भी division बहुत ज़्यादा था. Some princely states were favoring to join India. Some princely states were in the favor of join Pakistan. Some princely states were in the favor of remaining इंडिपेंडेंट. कुछ चाहते थे कि हम क्या रहें? इंडिपेंडेंट रहें. एंड सम प्रिंसली स्टेट्स वे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फॉर्म अ यूनियन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. उन्होंने कहा कि हम अपना एक ग्रुप बना लेंगे जो कि एक थर्ड एंटिटी होगी. वी विल मेक आवर ओन यूनियन. मेरी बात समझ गया ना? वी विल नॉट ज्वाइन इंडिया, वी विल नॉट ज्वाइन पाकिस्तान, वी विल मेक अ यूनियन ऑफ आवरसेल्फ. भोपाल स्टेट, त्रावणकोर स्टेट, हैदराबाद स्टेट. तो एक ये भी अप्रोच था कि हम क्या करेंगे? अपना एक यूनियन बना लेंगे. मेरी बात समझ गए? तो ऐसी चीजें थी. कुछ प्रिंसली स्टेट्स में क्या था? द रूलर वाज द मुस्लिम एंड द मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज हिंदूज. इन सम प्रिंसली स्टेट द रूलर वाज हिंदू एंड द मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज मुस्लिम्स. ओके, so things were becoming more and more complicated day by day. In the same series there was a state, Travancore state, which will study in India in 18th century. वहां जब केरला आप पढ़ते हो, त्रावणकोर स्टेट के बारे में पढ़ते हो. दैट स्टेट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेट एट दैट टाइम. ठीक है, त्रावणकोर स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि वहां पे एक रेयर अर्थ डिपॉजिट मिलता है, थोरियम. ठीक है, मोनाजाइट, एक्सेस टू मोनाजाइट. और ये मिलते ही त्रावणकोर स्टेट को लगता है वाह फुलजा सिमसिम, अब तो मोनाजाइट आ गया मेरे पास. अब इससे इतना ज्यादा पैसा आएगा, दूसरे देशों को मोनाजाइट की जरूरत होगी, थोरियम को जरूरत होगी. वी कैन सेल थोरियम, वी कैन मेंटेन आवर ओन इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशंस विद द अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज, एंड इन दैट केस वी शुड मेंटेन आवर इंडिपेंडेंस. क्योंकि अगर आपके पास कोई नेचुरल रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर विजिटेड अ कंट्री. किस देश में गए हैं? अभी हाल फिलहाल में. ठीक है, चलो यार आप लोग पढ़ नहीं रहे हो आजकल, करंट अफेयर्स न्यूज ना करो. ठीक है, तो व्हाट व्हेनेवर यू विल हैव व्हाट अ नेचुरल रिसोर्स, जब भी आपके पास नेचुरल रिसोर्स होगा, सो दैट नेचुरल रिसोर्स विल बी द सोर्स ऑफ व्हाट? This will be the source of economic prosperity, and with this economic prosperity we will be able to make our independence. तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग क्लेम थे. कश्मीर की अलग प्रॉब्लम थी. हैदराबाद स्टेट नहीं ज्वाइन करना चाहता था, त्रावणकोर स्टेट नहीं ज्वाइन करना चाहता था. गॉट इट? So these are the princely states at this time. Now whatever we have discussed here, इसमें आउटलुक अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल नेहरू का आउटलुक क्लियर था. नेहरू ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट आई एम अ सोशलिस्ट, मैं एक सोशलिस्ट हूँ, and I will never like, okay, that India should give recognition, okay, to the you can say that rights of these rulers. Okay, they must be a part of this democratic system. इनको democratic system का हिस्सा होना चाहिए. नेहरू ने ये बात साफ साफ कही. मेरी बात समझ गए? गांधी का अप्रोच अलग था. गांधी हमेशा थोड़ा अलग तरीके से सोचते थे. गांधी सेड दैट ये 1920s की बात है कि इंडिया में जो नेटिव स्टेट्स हैं, इफ दे विल प्रोवाइड गुड गवर्नेंस, ओके, तो उस मॉडल को हम दिखलाएंगे. किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि देखो लोकल रूलर्स कितना अच्छा गवर्नेंस प्रोवाइड करा रहा है. ठीक है, इनका मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा है, तो वी कैन हैंडल आवर एडमिनिस्ट्रेशन बाय आवरसेल्फ. ओके, तो कहीं ना कहीं गांधी थोड़े सिंपैथाइज भी थे. वो एक एग्जाम्पल और एक मॉडल की तरह उस चीज को पेश करना चाहते थे. मेरी बात समझ गए?
रूलर्स में भी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रूलर्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूँ मैसूर स्टेट का, ओके। तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ रूलर। मैसूर की कहानी आप पढ़ चुके हो इंडिया इन 18th सेंचुरी में भी, दैट successor from Wadiyar dynasty was just brought in Mysore। मैसूर स्टेट में वाडियार डायनेस्टी का एक सक्सेसर भी लाया गया। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप कुछ चीजों को समझोगे। जैसे मैसूर स्टेट में दिस टाइम पीरियड 1894 टू 1940, बताओ इंडियन नेशनल मूवमेंट का टाइम है कि नहीं? इज दिस द टाइम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो हियर कृष्ण राजा वडियार फोर वॉज रूलिंग, कृष्ण राजा वडियार फोर वॉज रूलिंग। तो देखो लोकल रूलर वॉज रूलिंग और नॉट? यस। फिर इस पीरियड में 1940 टू 1947 लिखना नहीं है, दिस फैक्ट डोंट राइट, ओके। जय चामराज वाडियार वॉज रूलिंग, यही रूल कर रहे थे। फिर 1947 से 1956 में इन्हीं का रूलर है जय चामराज, बट यहाँ पे 1947 इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंस, नाउ दिस रूलर विल बिकम व्हाट? राज प्रमुख। 1947 के बाद यही रूलर क्या हो जाता है? जय चामराज बिकम्स राज प्रमुख। मेरी बात समझ गए? फिर 1956 से लेकर 1974 में क्या होता है? यहाँ पे कुछ प्रिविलेजेस इनके ले लिए जाते हैं। मोनार्की इज अबॉलिश्ड कंप्लीटली बट द टाइटल्स विल रिमेन। वो अपने आप को राजा, राजा टाइटल ये बना रहेगा। बट व्हाट विल हैपन? 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 विल कम एंड दिस टाइटल विल आल्सो बी अबॉलिश्ड। ये टाइटल भी अबॉलिश हो जाएगा। तो 1974 के बाद क्या होता है? टाइटल भी अबॉलिश हो जाता है। तो ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 है, इसने क्या किया? प्रीवी पर्स को अबॉलिश कर दिया, टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया। फिर आप आर्टिकल 18 में भी देखोगे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नाउ दिस वाज वन पार्ट ऑफ डिस्कशन and what is the essence of this discussion? If now ask you that what was the role of princely states during Indian national movement, so you will say that okay, the role changes from time to time. There were different category of princely states, okay, who supported and contributed Indian national movement in different manner. There was also one class of princely state who were the loyal supporters of presence of British rule in India। ये बात आपको समझ में आई? अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप? इंफॉर्मेशन बता सकते हो कि आफ्टर 1858 ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड व्हाट? द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। देयर दे डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर, दे गिव अप देयर पॉलिसी ऑफ forceful annexation of states. This was an attempt to appease the princely states, okay. So the two category of states will come. One is the British provinces, second is the native Indian states. Then they will try to appease these rulers by different means. They will try to anglicize, they will give them respect, honor, okay, postal stamps and all these things, okay, clear? Now 1905 what will happen? Swadeshi movement. Now at that time also Curzon says that the official British policy is to get the support of princely states. So it's quite clear that the British tried to gain the sympathy of princely states to make our नेशनल मूवमेंट वीकर, ठीक है, ये एक पर्पस था। देन वी डिस्कस दैट व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 1920-21, then what happened? Okay, chamber of princes, then what we see? Butler committee, the recommendations of Butler committee, all this shows that British government is trying to gain help and support of province, Indian states or the native states, okay, and they are trying to also implement their policy of divide and rule। डिवाइड एंड रूल भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, कि ब्रिटिश प्रोविंसेस की जनता को और इंडियन स्टेट्स की जनता को हम क्या करें? आपस में बांट दें। द सेम हैपेंड इन व्हाट? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके। नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट वाज म्यूट, ओके। सो नाउ द प्रिंसली स्टेट्स, नेटिव स्टेट्स आर इनसिक्योर, दे पार्टिसिपेटेड इन आरटीसी, और आरटीसी में गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड क्या की कि हमारी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखा जाए। 1935 का एक्ट आता है, उसमें उनको एक ऑप्शन दिया गया है और वो क्या है? वॉलंटरी चॉइस। इफ दे विश टू ज्वाइन इट्स ओके, इफ दे डोंट विश टू ज्वाइन इट्स ओके। 1935 के बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हैं, in all these constitutional development what we see that the voices and the demands of princely states have been granted by the British government in limited manner। गवर्नमेंट ने उन डिमांड्स को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, ठीक है। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, दूसरी तरफ उनको फ्रीडम दे रहा है कि आप चाहो तो ज्वाइन करो, चाहो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनो,
चाहो तो मेंबर मत बनो। इसका एक और पर्पस है, और वो पर्पस क्या है कि ड्यूरिंग दिस फेज 1940 to 1947 we see so many attempts were made to solve the constitutional development between Indian political parties and the British government. And in all these attempts, what we see that British government is making its commitment or repeating its commitment again and again that they will not compromise with the rights of minorities, and at the same time they are also granting some privileges or relaxation to the local rulers, okay, or the native states. And what could be the purpose? The purpose could be to ensure this thing that once India will get independence, what will happen? Okay, these when India will get independence, okay, the power will be transferred to different entities. Okay, it will not be a single country. It will be one India, one Pakistan, and there will be hundreds of independent states. And in this way, India will be a weaker nation in future. And in that case, it will always look towards help and support of British government. But Mountbatten was little bit sympathetic. Okay, so his provisions where he did not make it clear that princely states are allowed to remain independent. उसने ये लिखा नहीं. Okay, so that helped and supported a lot. Now, the second part of this lecture is what? Okay, outlook of INC, outlook of Jawaharlal Nehru, outlook of Sardar Vallabhbhai Patel, outlook of princely states, which princely states were favoring India's independence, which were not favoring India's independence, why Hyderabad did not want to become a part of India, Kashmir, what was the problem in Kashmir? Okay. In this way, in the second part, we will discuss all this. We will discuss the role of Vallabhbhai Patel, we will discuss the role of VP Menon, we will discuss this entire idea of कश्मीर, कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है अब तक से रिलेट करके सेकेंड लेक्चर में देखेंगे. तो अभी इस लेक्चर से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. जब आप लेक्चर नंबर 2 पे आओगे तो अभी जो भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में चीजें डिस्कस करी हैं वो थोड़ी और बेहतर समझ में आएंगी, राइट? लेक्चर 3 में जब आप एंटर करोगे देन आई विल डिस्कस विथ यू कि इंडिया में 1947 के बाद स्टेट फॉर्मेशन हुआ कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या क्या है, कौन से आर्टिकल्स हैं, स्टेट मेकिंग में कौन कौन से चैलेंजेस थे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का इशू क्या था, ठीक है, न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है. आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन लेक्चर नंबर 3. एंड दिस पार्ट जिसमें मैं मेंशन कर रहा था क्रिप्स, कैबिनेट, माउंटबेटन, तो अभी चूंकि आपने ये पढ़ा नहीं है डिटेल में तो केवल मैंने कुछ सेलेक्टेड रेफरेंस दिए. व्हेन आई विल डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन अ होलिस्टिक मैनर will be able to remember each and everything. ठीक है, so this is an integrated lecture where we try to develop the basic concepts also. Now I think you are a little bit comfortable in this topic. कुछ आपकी समझ बनी कि केवल facts पता चला, understanding, a little bit understanding, कुछ फायदा हुआ. But if you will take all these 3 lectures, okay, this entire topic will become very much clear for you. ठीक है, एग्जाम आप 2025 में दो, 2026 में दो, कोई दिक्कत नहीं है. आप इंफॉर्मेशंस को कभी नहीं भूलोगे अगर आप इंटरलिंक्ड वे में टॉपिक्स को पढ़ोगे, फ्री की तरह टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी. मेरी बात समझ गए? तो इसका अगला लेक्चर हम शेड्यूल करेंगे और जब भी शेड्यूल करेंगे तो आई विल सेंड यू मैसेजेस एंड यू कैन, ओके, सो दैट विल बी लेक्चर नंबर 2. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क मी. ठीक है, दिस वाज द बेसिक फाउंडेशनल स्टडी ऑफ दिस टॉपिक. Lecture number 2 and lecture number 3, okay, we will discuss all other issues that are also core issues. पता ही होगा ये सारे तो कश्मीर का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश, लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्मेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. तो आप इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस खुद ही समझ सकते हो. जब आप PYQ उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो कितना रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए. गॉट इट? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हैव एनी क्वेश्चन?